Good afternoon. The question, why neighborhood first? Why neighborhood first? Why not major power first? Because you look, once we read out any topic, always think critically. And the question is that if we are saying that neighborhood first, आपके neighborhood के साथ relation कैसे है? Then you are living in idealism. Because what Kautilya says that realistic point of view, what Kautilya says that neighbor is an enemy. Why neighbor is an enemy? Because of geopolitics. And why neighborhood first? Because of same reason. So if we are looking for why neighborhood first, time and again we have repeated that India is a major power and every nation state, they are making their policy for maximization of national interest. See, what is the objective of any nation? That is the national interest. So why neighborhood first? You look, we can point out. कई बार हमारे पास ऐसा होता है ना कि यूपीएससी में कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट राइट कमेंट ओपन एंडेड है, तो यू मस्ट नीड अ एनालिटिकल कैपेबिलिटी कि हाउ वी कैन एक्सपेंड द क्वेश्चन, because that is very important phrase, neighborhood first. Same principle that was propounded by Indra Kumar Gujral when he was a Minister of External Affairs in 1996. Later he became PM, but once he gave the idea of Gujral doctrine, he was not PM at that time. And that's very interesting. During coalition government, he was propounding the idea of Gujral doctrine. The term he is not coining Gujral doctrine. That is just written by Bhavani Sen Gupta, a scholar of international relations. He was writing an article over the same principle. He coined the term Gujral doctrine. But it was also an example of neighborhood first. So neighborhood first is more like a change in name, not in content. They're just like what we are emphasizing over look east. Now we are saying act east. Even qualitatively there is no change. There is quantitatively there may be change. Therefore, after 1991, what is change in foreign policy? It is quantitative, not qualitative. What was the qualitative change in foreign policy? That we are repeating after 91, because from socialism to liberalism, that is a qualitative change. And after 90, we are pursuing the same policy. After 90, Gujral doctrine, now we are saying neighborhood first. After 90, what we have reiterated, even economy, strategic interest of India, same policy we are also pursuing. There may be more focus over implementation. There is more focus over the removal of deficit delivery. But objectives are same. Therefore, there is more continuity in foreign policy after 90 than change. Neighborhood is also continuity. So neighborhood, the question is why neighborhood first? Geopolitical reason. Why neighborhood first? It is geopolitical. Why neighborhood first? Because of geo-economy. Why neighborhood first? Because of recognizing India's major power status. Recognizing India's major power status. Why neighborhood first? Because now India want to play a major role for shaping the world order. Then we can expand every point. तो आप देखोगे कई बार हम ब्लैंक हो जाए, कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चन आ जाए, देन वी कैन ओपन द क्वेश्चन बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी. तो ये तो बड़ी मेजर डायमेंशन होते हैं कि वाई वी आर परसुइंग सम फॉरेन पॉलिसी. तो वाई जियो पॉलिटिक्स, एंड वी नो द व्हाट इज मीनिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स. Time and again what we have emphasized about the fact what is geopolitics, how geographical factors are shaping the foreign policy, that is geopolitics. Nation state is geographical idea. Nation state is primarily a geographical concept, and therefore what is geopolitics?
location. What is geopolitics size? If you look geopolitics of India, and that will always remain the same. तभी आप देखोगे. अब आपके लिए करंट अफेयर क्या होगा? एनी चेंज इन बांग्लादेश मे बी करंट अफेयर फॉर यू. फॉर मी इट्स नॉट करंट अफेयर. Geopolitics is always there. Yes, there may be change of government. There may be change of government, but it is not any simple change of government. But geopolitically, why Bangladesh will always be important? यहाँ थोड़ा मैप डोंट टेक मैप थोड़ा सा दिस इज द ऑफिशियल मैप ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से चले तो कई बार तो अलग अलग मैप हम ले लेते हैं. तो व्हाट इज जियोपॉलिटिक्स लोकेशन? ज़रा सोच के देखो. जियोपॉलिटिक्स मालदीव्स, जियोपॉलिटिक्स श्रीलंका, जियोपॉलिटिक्स बांग्लादेश. अब जियोपॉलिटिक्स सिंपल सी बात है. देखो इंडियाज मेजर पावर, बाकी सब जो हमारे क्षेत्र वेरी स्मॉल नेशन. एंड कैन यू इमेजिन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया समथिंग पॉजिटिव? Because this is ocean, that is a natural boundary for India, that is positive. But the same Indian Ocean is now turning out to be a reason for a tussle of major power. अब यहाँ China is now having 360 aircrafts and aircraft carriers in this world. Now China has been emerging the largest naval power in the world. Therefore, that is creating a problem in Indian Ocean. और अब देखोगे अगर चाइना की एंट्री हो जाए मालदीव्स में, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, देर स्मॉलर कंट्रीज. वंस वी वांट टू डिवाइड आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड जियोपॉलिटिक्स, अब देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड आवर नेबरिंग कंट्रीज. कैसे? फर्स्ट, नेबरिंग कंट्रीज विच आर मेजर पावर, वी कैन डिवाइड आवर नेबरिंग कंट्रीज इन कैटेगरीज लाइक मेजर पावर, दैट इज चाइना. दैट इज जियोपॉलिटिक्स. अब जरा सोच के देखो, अगर मंगोलिया हमारे पास होता और चाइना उसके पीछे होता, इंडिया वुड हैव बीन ए टू मच कंफर्टेबल पोजीशन. इफ तिब्बत वुड हैव बीन ए बफर स्टेट, ये हमारे लिए बड़ा एडवांटेज कंडीशन. दोनों हमारे पास नहीं है. चाइना इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, बट सेम टाइम चाइना इज अ मेजर पावर. इट्स नॉट ओनली मेजर पावर, एडवर्सरी टुवर्ड्स इंडिया. जो मोहल्ले का प्रधान है वही हमारा दुश्मन है. तो आप समझ लो. नाउ चाइना, 21st सेंचुरी बिलोंग टू चाइना, 19th सेंचुरी बिलोंग टू यूके, 20th बिलोंग टू यूएस, 21st चाइना, राइज ऑफ चाइना. पूरी दुनिया में चाइना ही तो है. तो आप समझ लो सबसे पावरफुल आदमी से पंगा लेना, दैट इज़ नॉट रियलिस्ट अप्रोच. कहा भी जाता है ऐसी बाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, उससे पंगा न लीजिए जो आपसे तगड़ा हुआ. दैट इज़ अ क्रक्स रियलिस्ट पॉलिसी. लेकिन सवाल है, हमने पंगा ले रखा है, खुद पंगा ले रहा है? हमने कोई पंगा लिया ही नहीं. चाइना है, इट मीन्स मेजर पावर, इट्स चाइना. ये जो पॉलिटिक्स है, बात अगर यहीं तक हो जाती तब तो ठीक है. चाइना, नाउ चाइना इज हैविंग एक्सेस विथ पाकिस्तान, और मामला आ गया. अब दुनिया में कहीं पे मुझे कोई एक्सेप्शन ऐसा दिखाओ जियोपॉलिटिक्स में. टू नेबरिंग कंट्रीज, दे आर शेयरिंग बॉर्डर ऑफ इंडिया, बोथ आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया. मोरोवर, both are having border dispute towards with India. Not only that, they are having nuclear weapon state. और कोई ऐसा दुनिया में कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ किसी नेशन स्टेट सामने ऐसा हो. दैट इज जियोपॉलिटिक्स. इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन, इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है. बोथ आर इन फैक्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर. एंड व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? दे आर एडवर्सरी टुवर्ड्स इंडिया. That has always been a greatest geopolitical challenge for India's security. यही तो नए से जियोपॉलिटिकल थ्रेट है. अब देखो, जियोपॉलिटिक्स मीन्स लोकेशन. जब लोकेशन होगा तो नेचुरली दे वांट टू सप्रेस इंडिया, दे वांट टू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया. और कहा भी जाता है कि देखो लड़ाई तो ज़मीन की नहीं होती, लड़ाई किसी हेजेमनी की, डोमिनेंस की, पावर की. तो पहला चैलेंज आता है जियोपॉलिटिक्स का कि चाइना एंड पाकिस्तान, दे आर हैविंग द एक्सेस. थर्ड क्या है? नाउ देखो जियोपॉलिटिक्स में बेस्ट कंडीशन में क्या मिली है? भूटान.
ऐसा दोस्त हमें चाहिए नेबरहुड में, बिकॉज वंस वी आर सेइंग नेबरहुड फर्स्ट, देन व्हाई? बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स. सो जियो पॉलिटिक्स में बी एडवर्सरी इन वन डायरेक्शन, वेरी कंफर्टेबल इन अदर. भूटान के साथ तो हमारी ऐसी दोस्ती है दैट इज़ वेरी रेयर. भूटान, हमारे अलावा भूटान का किसी के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है. दैट इज़ ऑलमोस्ट अ रेयर कंडीशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. देखो, वी आर हैविंग ए वेरी टिपिकल नेबरहुड. पाकिस्तान कहता है इंडिया के अलावा और कोई चलेगा. पाकिस्तान अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ नो इंडिया. भूटान अडॉप्ट ओनली इंडिया. दीज आर टू डाइवर्स अप्रोचेस ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज. अब आप देखोगे भूटान की जैसे हमारी पॉलिसी है, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद भूटान, बट साइज ऑफ भूटान इज़ वेरी स्मॉलर. भूटान इज़ नॉट ए मेजर पावर. तो भूटान तो समझ लो मोहल्ला वल्ला है, 5-6 लाख की आबादी हमारे मेट्रो में से चलती रहती है, तो मोहल्ला है हमारे लिए. फिर भी नेबरहुड है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप देखोगे क्यों, और थर्ड कैटेगरी में कौन से नेशन है? फर्स्ट चाइना एंड पाकिस्तान, देयर एडवर्सरी. भूटान इज़ वेरी क्लोज. और थर्ड कैटेगरी में वो नेशन है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी प्रो इंडिया, कभी एंटी इंडिया. बट व्हाट इंडिया इज गोइंग टू टेक ए स्टेप. तो अभी देखो बांग्लादेश में व्हेन हसीना वाज देयर एवरीथिंग वाज कॉर्डियल, बस सडनली. और नेपाल में ये देखो जब कम्युनिस्ट आते हैं तो प्रचंड. वंस कम्युनिस्ट पार्टी कम इन नेपाल, दे ऑटोमेटिकली प्रोमोट एंटी इंडिया पॉलिसी. लेकिन आप याद रखो ये इतने स्मॉलर हैं. और एज ऑफ नाउ इन मालदीव्स में भी मोइजू गवर्नमेंट is a pro-China. Now Bangladesh is also pro-China. Nepal is also pro-China. And then Sri Lanka. Sri Lanka may not be pro-China, but not against China. तो अब आप देखोगे what is geopolitics. ये जो सारे नेशंस हैं they are very smaller. हमारी नेबरहुड में 2 ही नेशन ऐसे हैं which are very capable to attack over India. केवल 2 ऐसे हैं. In past, if you look, we are engaging in a war with India, war with China and Pakistan, and they're very capable in terms of military capability. They're capable to attack over India. इनमें पावर नहीं है. बाकी जो है ये चाह के भी नहीं कर सकते. But if they are siding with China, then they will create trouble for India. That is a problem. Time and again, that is a crucial issue. अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकती है. तभी आप देखोगे मालदीव्स बिकॉज ऑफ सी कम्युनिकेशन लेंस, नेपाल बिकॉज ऑफ हिमालयन बाउंड्री, एंड देन श्रीलंका बिकॉज ऑफ अगेन द सी कम्युनिकेशन लेन एंड इंडियन ओशन. म्यांमार में भी तो अभी आप देखोगे म्यांमार इज़ ए कंफर्टेबल, बट म्यांमार इज़ ए इंटरली इनस्टेबल. श्रीलंका इज़ ए वोलाटाइल. मालदीव इज़ नॉट इन वेल कंडीशन. बांग्लादेश इज़ अगेन इन टर्मोइल. अब जरा सोच के देखो, अफगानिस्तान की बात ही करना बेकार है, वहाँ दुनिया में सारी टेररिस्ट की गवर्नमेंट है. ऐसा हमारा नेबरहुड है. देखो यही जियो पॉलिटिक्स है. अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बगल में होते तो कैसा कंफर्टेबल पोजीशन होती. ये तो हम चेंज कर नहीं सकते. बांग्लादेश तो लोग इधर आना चाहते हैं, नेपाल से इधर आना चाहते हैं, मालदीव में प्रॉब्लम है. और बाकी जो है स्टेबल हैं वो हमारे दुश्मन हैं. स्टेबल क्या, पाकिस्तान तो इसे बर्बादी कगार पे है. और इसलिए दुश्मन मर जाए, पावरफुल हो जाए तो चैलेंज, वीक हो जाए तो चैलेंज. तो पाकिस्तान का भी डिस्टेबलाइज होगा तो लाहौर इज़ ओनली 22 माइल्स अवे फ्रॉम द अमृतसर. सारे लोग कहाँ आएंगे? अमृतसर में आ जाएंगे. और आप इधर सोच के देख लो, बांग्लादेश राइजिंग पॉपुलेशन, बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 1200. अब आप जरा सोच के देख लो इस पड़ोस से निकल कहाँ जाए. नेबरहुड कैसा है? नेबरहुड कैसा है? ये जियो पॉलिटिक्स है. तो अब बताओ इस जियो पॉलिटिक्स में क्यों हमारे लिए नेबरहुड फर्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है. तो सवाल ये है कि अगर इनके अप्रोच इस तरीके के हैं तो बीइंग अ मेजर पावर हमारे अप्रोच कैसे होने चाहिए. दैट इज़ रीज़न आवर अप्रोच विथ चाइना एंड पाकिस्तान में बी डिफरेंट. आवर अप्रोच टुवर्ड्स भूटान इज ऑटोमेटिकली डिफरेंट. आवर अप्रोच टुवर्ड दीज नेशंस विल ऑलवेज बी डिफरेंट. एक ही किस्म की पॉलिसी अपनाई जाए, डिफरेंट किस्म की पॉलिसी अपनाई जाए, डिफरेंट किस्म की, और वो अपनाते हैं.
तो अब क्या करें? देखो, अगर मान लो आपका पड़ोस का कोई छोटा बच्चा है, क्लास कर गए और छोटा बच्चा है गाली दे के भागा, क्या करोगे आप? बच्चे को समझाना चाहते हो? ओ माय गॉड, मतलब बच्चा भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, आर यू अज्यूमिंग दैट? बच्चा समझने वाली बात होता है, कमाल के बच्चा है, बच्चा है, समझने वाली कैसी बात होता है? क्या? उसको उसकी लैंग्वेज समझाए? ओ माय गॉड, दैट्स वेरी सब्जेक्टिव। उसको उसकी लैंग्वेज समझाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट, हमें नहीं समझाए कौन सी लैंग्वेज होगी वो। दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज। तो मुझे समझ में नहीं आएगी, आप करो, इग्नोर करोगे, अजीब सी बात नहीं। मोहल्ले में आप गाली पड़ रही है, बीइंग ए रेशनल पर्सन, रोज ही बच्चा आप गाली दे रहा है और आप इग्नोर करते जाओगे। देखो, करो क्या ये बताओ? सिंपल। अरे क्यों नहीं कहते कैडबरीज दे दोगे? अरे छोटा बच्चा है, पीटोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मालदीव्स में क्या अटैक कर दे? मालदीव्स की पूरी पॉपुलेशन को आईएनएस विक्रमादित्य में हम बैठा सकते हैं, तो आप समझ लो। तो वो तो ऐसे नहीं कि उसको पीटने जाए। और आप याद रखना, रसिया है क्रिएटेड ट्रबल। यूक्रेन से हार जाए तो भी हारेगा, जीत जाए तो भी हारेगा। एवरी वॉर इज अ लेसन फॉर अ जियो पॉलिटिक्स। भाई हर चीज़ को कंपेरिजन कर सकते हैं ना। एंड कन्फ्रंटेशन इज अ पर्पज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कोऑपरेशन इज पर्पज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मैक्सिमाइजेशन नेशनल इंटरेस्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो इमोशनल, आपके सारे रिएक्शन इमोशनल है। पीट देंगे, समझा देंगे, कमाल की बात है। सिंपल बात क्यों नहीं कहते? कैडबरीज दे दो, बोल देना जब भी आए तो मुझे अंकल बोलना, और दूंगा अगली बार, देखो आपका दोस्त बन जाएगा। मालदीव से क्या चाहिए? श्रीलंका। अब बताओ, श्रीलंका स्मॉलर कंट्री, श्रीलंका हमारे लिए थ्रेट नहीं बन सकता, कम से कम ये तो। और आप यार को धमकाओगे तो कहाँ जाएगा? चाइना के पास जाएगा, और चाइना के पास जाएगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। भाई चाइना पाकिस्तान दो बाउंड्री पहले से टर्मोइल में है, बाकी बाउंड्री में प्रॉब्लम करेंगे तभी तो। बांग्लादेश इज़ नाउ वेरी क्रूसियल, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, बांग्लादेश इज क्रूसियल। हाउ विल मैनेज नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट तो वैसे प्रॉब्लम में आ जाएगा। और सवाल है, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको, अगर आपके मोहल्ले में छोटे मोटे लोग हैं और आपसे बार बार लड़ना चाहते हैं, तो आप उसमें एनर्जी बर्बाद करोगे, मेलोनी से मिलने का भी टाइम निकालोगे? अब बताओ, मेलोनी इज वेटिंग अस, यूएस इज़ वेरी मच विथ अस, जर्मनी जापान खाली है, न्यूजीलैंड कहता कभी आप आते ही नहीं है, सिंगापुर कहता है इतने देर में क्यों आते हो। और हमने सारी एनर्जी कहाँ लगा रखी है? पाकिस्तान में। ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल है, ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान में इंगेज रहेंगे तो बाहर जाने का टाइम मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। तभी नाउ यू कैन राइट द सेम इज जियो पॉलिटिक्स, वी कैन चूज फ्रेंड नॉट नेबर्स। और इसी बात को ऐसे देख लो, ऐसे आप जियो पॉलिटिक्स में देख लो, जितने भी आर्गूमेंट आपके हों। कैसे? वंस डॉक्टर मनमोहन सिंह he gave an idea, and he said that in days to come I would like to travel from New Delhi. I will take a breakfast in Amritsar, and then it is a lunch in Lahore and dinner in अफगानिस्तान। ये सीधा रास्ता है। दिल्ली से अफगानिस्तान ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस हो, जोधपुर, दिल्ली टू जोधपुर। यहाँ जा सकते हैं सीधा या नहीं? और क्या टूरिज़्म होगा, ट्रेवल होगा, लोग आए जाएंगे, कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी होगी तो दैट इज़ अ स्पिल ओवर इफेक्ट। द कोऑपरेशन इन वन फील्ड दैट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग कोऑपरेशन अदर। टूरिज़्म होगा, ट्रेड होगा, कनेक्टिविटी होगा, सबको फ़ायदे होंगे। पाकिस्तान कह रहा नहीं जाना है, जियो पॉलिटिक्स। अब क्या करोगे आप? सेंट्रल एशिया हमारा दोस्त है, ऊपर है, पाकिस्तान कह रहा नहीं जाना है। अगर पाकिस्तान ट्रांजिट रूट दे तो हम अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में वी कैन एक्सेस इजिली। पाकिस्तान नहीं दे रहा है, दैट इज जियो पॉलिटिक्स। देयरफॉर देयर इज नो ऑप्शन ऑफ अ नेबरहुड। आप जरा सोच के देखो, ये जितने देश हैं ना छोटे मोटे दुनिया में, वैसे मोर देन 100 नेशन है।
कितने आइलैंड है। अफ्रीका में तो कम से कम 30 ऐसे ही हैं, मतलब ही नहीं होता। ऐसे जो हमारे आसपास के लोग हैं, अभी हमारे पास हैं, बस इसी का जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अदरवाइज इन 193 नेशंस ऑफ यूएन अब 50 तो वैसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी नीचे है, हमारे लिए मैटर ही नहीं करते। पीएम कभी अपने सुना ऐसे देशों में जाते हैं? रेयरली। पैसिफिक में भले वही ओशियन का मामला चले गए, नेबर वी विजिट स्मॉलर कंट्रीज, क्या करेंगे हम? तो हमसे कौन से, लेकिन पास में आ जाते हैं। मामला तो जियो पॉलिटिक्स सही है ना। इतने छोटे छोटे देश दुनिया में 50 है, मतलब ही नहीं है। और नेबरहुड अगर प्रॉब्लम कर दे तो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? श्रीलंका पे मारोगे तो भी बेइज्जती, पिटोगे तो भी बेइज्जती। वियतनाम ने, आपको पता है कोल्ड वार में यूएस के लिए क्या प्रॉब्लम किया, और वियतनाम ने चाइना के लिए क्या प्रॉब्लम किया। चाइना स्टिल रिमेंबर वियतनाम। क्यूबा ने अमेरिका को छका दिया पूरे कोल्ड वार में, नेबरहुड था, इतना ही देश है को क्यूबा। 2-4 गाली देता था यूएस को, बैठ जाता था। और यूएस कहता था यार यू आर वेरी एंटी अगेंस्ट यूएस। उसने कहा हाँ मैं तुमको पीटने का भी सोच रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। अब सोचो इसमें तो प्रॉब्लम है यूएस को। नेबरहुड इज अ चैलेंजिंग। अब आप देखो यहाँ पे वाई बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें जाना है, ये अगरतला सीधा रास्ता है, बाय ढाका सीधा रास्ता 350 किलोमीटर है। एक घूम के रास्ता कितना है? 1800 किलोमीटर। इंपॉर्टेंस ऑफ जियो पॉलिटिक्स, नेबरहुड का इंपॉर्टेंस है, आप कहाँ रिप्लेस कर दोगे? इतना ही नहीं है, श्रीलंका, अब यहाँ पे लॉर्ड हनुमान ने एक ब्रिज बना दिया था, वो हमारे लिए आज प्रॉब्लम है। देखो जियो पॉलिटिक्स सर्चिंग एक ही तो आ रही है, वाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, लेट अस सी। पाकिस्तान अगर रास्ता दे देता तो अपने दोस्तों के पास, सेंट्रल एशिया के बड़े सारे दोस्त हैं, बुलाते हैं कि यार आ जाया करो, ब्रेकफास्ट ले लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, घूमते टहलते इतने पास में नहीं आते। हमने कहा अरे भाई ये बीच में है, नहीं आने देता। ऐसे ही एवरी टाइम वी आर सपोज टू इन सर्कलिंग एंटायर श्रीलंका, पूरी श्रीलंका में घूम के जाना पड़ता है। आपको पता है अगर हमारा ही कोई शिप ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, वेस्ट ईस्ट जा रहा है, श्रीलंका क्रॉस करके जाएगा हमेशा। यहां से हम जा ही नहीं सकते, एडम्स ब्रिज। और श्रीलंका में ही चाइना खड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब है जहाँ से हमारे सारे गुड्स इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और यहीं तो हमारी, यहीं पे मेजर तो हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो इधर है। तो आप जानते हो कोई वार होता है तो पहला अटैक तो ऑयल रिफाइनरीज पे होता है। शिपिंग रूट है, ये ट्रेड रूट है, इस पे श्रीलंका इज़ वेरी वल्नरेबल। सेम रीज़न बिकॉज ऑफ मॉलडीव्स। भाई जियो पॉलिटिक्स क्या है? यू कैन अप्लाई एवरीथिंग। व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? सवाल ये है कि ये जो 200 नॉटिकल माइल है, दैट इज ईजेट फॉर इंडिया। ये ईजेट है। अदर जियो पॉलिटिक्स आप देख लो, श्रीलंका और ये आपके मालदीव्स के हैं, चाइना कम। चाइना को बुला लें और कहें भाई अब तुम ऑयल एक्सप्लोरेशन करो ईस्ट इंडियन ओशन में, बिकॉज आवर ईजिप्ट इज वेरी मच ओवरलैपिंग विद द बाउंड्री ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो आप जानते हो कि 12 नॉटिकल माइल दैट इज सॉवरेंटी ऑफ एनी कंट्री, और सॉवरेंटी का मतलब 12 नॉटिकल माइल में नो नेबल शिप इज सपोज टू कम विदाउट आवर परमिशन। सवाल है इसी 12 नॉटिकल माइल में श्रीलंका, हम नहीं चाइना को बुलाएंगे, श्रीलंका बुला लेगा, तो वो हमारी सॉवरेंटी में इंटर करेगा या श्रीलंका की सॉवरेंटी में? जियो पॉलिटिक्स। 200 नॉटिकल माइल ईजेड है और चाइना ने इधर बुला लिया, भाई आ जाओ तुम ऑयल एक्सप्लोरेशन करो। ऑयल का ही एक्सप्लोरेशन होगा या कुछ और का भी होगा? भाई चाइना की नेवल शिप होगी ना। आपके मोहल्ले में कोई खड़ा होकर आपको ये काउंट कर ले, मोबाइल साइलेंट कर लो। दैट इज जियो इकोनॉमी, नॉट जियो पॉलिटिक्स। कनेक्टिविटी की दुनिया है ना, तो बिला वजह डिस्टर्ब कोई कर रहा है। तो अब देखोगे, अच्छा इसका भी हम देखेंगे। दैट इज जियो इकोनॉमी। एवरी टाइम यू कैन अप्लाई जियो। वाई नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर आप देखो लोग, अगर 200 नॉटिकल माइल में चाइना, कई बार ऐसा होता है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, don't be angry. In diplomacy, never be angry. Oh my God, what you write out in diplomacy? Be smile. इसने smile. अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं. Nothing is. Probably you are not learning with diplomacy. Diplomats are not supposed to become angry. जो बताओ एस जयशंकर जा रहे थे, यूरोपीय देश कैसे ग्रिल कर रहे थे, एस जयशंकर को भी गुस्साते होते देखा हुआ है. नेवर बी एंग्री. कोई कुछ भी कह दे, निकल जाओ. कमाल, यही यंगस्टर्स को सीखना है अभी. नहीं ऐसा कुछ सॉरी वॉरी करने वाली बात ही नहीं है, सॉरी करने, बट डोंट बी स्माइल एंड डोंट बी एंग्री. ऐसा रहो किसी को पता ही नहीं चले सोच क्या रहे हो. सिट लाइक बुद्धा. मैंने जसवंत सिंह की कहानी बताई थी कि नहीं आपको? दैट इज रीजन ही वेंट इन यूएस फॉर एंगेजिंग इन द टॉक विथ हिज टॉप टॉलबॉट. और अभी एस जयशंकर को, आई हैव नेबर्स, ही इज परफेक्ट डिप्लोमेट. चाइनीज को आप देखो, चाइनीज कभी स्माइल नहीं करते. सी जिनपिंग को आपने देखा है, फेशियल एक्सप्रेशन समझ ही नहीं पाते बोल क्या रहा है. ऐसे डिप्लोमेट को होना चाहिए, बट लाइफ इज लर्निंग प्रोसेस. तो अब आप देखो हर जगह यही जियो पॉलिटिक्स है. नेपाल क्या कह रहा है, मैं रेल लाइन चाइना से जोड़ लूँ. मैंने कहा क्या ज़रूरत है चाइना से, उनका टूर होगा, ट्रेवल होगा. इवन चाइनीज वांट टू क्रॉस हिमालयाज. एंड माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? नेहरू वंस सेड दैट. भाई नेहरू से कहा जाता था, नेहरू यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द थ्रेट ऑफ चाइना. नेहरू से डोंट वरी, there is a Himalayas comes between India and China, and China cannot bypass Himalayas. Now it is no longer truth. Now China is entering into CPEC. China is coming with CPEC, सीधा CPEC ला रहा है इधर से. Now China is having rail project in the Kathmandu. हिमालय का तो क्रॉस ही कर दिया उसने. और जब वो रेल, अब जरा सो CPEC, ये CPEC है, ये कनेक्टिविटी है या स्ट्रेटजिक थ्रेट है? कोई लिबरल देखेगा तो क्या कहेगा, ओह माय गॉड कनेक्टिविटी, कम हियर एंड गो, दिस इज ट्रैवल टूर डेवलपमेंट, ये सब करेगा. इससे ट्रक ही जाएगा, इससे टैंक भी जा सकता है. और ज़रा सोच के देखो, इंडिया चाइना के बीच हिमालय चला गया ना, सीधे नाउ चाइना इज हैविंग एक्सेस इन द प्लेन ऑफ इंडिया, सीधे न्यू दिल्ली टारगेट पे है. This is geopolitics. I am not saying that this is only one dimension of international politics, but once you want to understand geopolitics, everywhere there is geopolitics because of geographical factor. And there is an alternative approach of geo-economy that we will discuss. But as far as geopolitics is concerned, तो देखो हम नेपाल में भी चाइना आ गया, इधर सीपैक आ गया, then it is also entering into म्यांमार. अब इधर चाइना कहाँ से, यूनान प्रोविंस से कहाँ पर आ गया, म्यांमार में. इंडियन ओशन में तो घूम ही रहा है रोज. बताओ हमारे मोहल्ले में दूसरा कोई आए और हमारे छोटे मोटे लोगों से दोस्ती करके चला जाए, तो मेरे रहने क्या मतलब है? डोंट. भाई मैं कह रहा हूँ मैं मेजर पावर हूँ, फिर भी लोग बिना हमारी परमिशन के हमारे मोहल्ले में लगातार एंट्री कर रहे हैं. ये दिस इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया और नॉट? दिस इज ए जियो पॉलिटिक्स. तो आप चाइना देखोगे, पाकिस्तान देखोगे, एवरीवेयर दैट इज जियो पॉलिटिक्स. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हाई नेबरहुड फर्स्ट, यू कैन नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स. पूरा पूरा कोलम, सब हेम्बन टोटा पोर्ट ही दे दिया उसने. अब वो नेबल बेस तो नहीं है, देखो ग्वादर नेबल बेस है, देर में भी टू ग्वादर नेबल बेस है, ये तो पोर्ट है, कमर्शियल पोर्ट है. लेकिन बात वही है. अब भाई चाइना का ये तो क्या कमर्शियल. और अभी तो पहली बार ऐसा हुआ, कल की आज की न्यूज़ है ऐसा कि पहली बार कोलंबो में हमारा भी नेबल शिप INS मुंबई पोर्ट हुआ, उसी समय पार्क हुआ चाइना का नेबल शिप. अब तो दोनों आमने सामने आ जा रहे हैं. और जरा सोच के देखो, यहीं पे सबमरीन चाइना की भी जाती है, यहीं सबमरीन हमारी भी जाती है. अंदर मुलाकात होगी तो क्या होगी? क्लैश होगा कि नहीं होगा? क्लैश होगा. और न्यूक्लियर सबमरीन भी है. दैट इज जियो पॉलिटिक्स. वी कैन हैव अल्टरनेटिव आइडिया, बट दैट इज फर्स्ट आइडिया ऑफ जियो पॉलिटिक्स. सो यू कैन नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स. पहला
हाँ, ये तो पीओके है ना, उसी से पीओके है। उस टाइम पे मतलब, देखो मेरे बच्चे, बात सिंपल सी है। मैंने फिर कहा इसलिए कोई ज़मीन खरीद लेना, पहले बाउंड्री बनवा लेना, नहीं ज़मीन की रजिस्ट्री आपके पास होगी, पोजीशन किसी और का होगा। तो ये तो वो तो जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था, 1/3 ऑफ पीओके दैट इज टेकन अवे पाकिस्तान सिंस 48 ऑनवर्ड्स, उसी समय से उसके पास है। ऑफिशियली वी से दैट पीओके बिलोंग टू अस। इसलिए हमने कहा ना कि कंट्रोल होना एक चीज़ है। किसी का फोटोग्राफ लेने पर कोई अपना हो जाता है? नहीं होता है ना। तो हमारे पास न तो अक्साई चीन है और न ही पीओके है, बट वी आर क्लेमिंग दैट दिस इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। तभी तो बार बार हम कहते हैं चाइना इज़ ब्रीचिंग सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, ये हम कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, पीओके लेने के लिए वॉर कर लो, अब वॉर में कॉस्ट बेनिफिट देख लो। अगर कल के लिए आप वॉर करोगे पीओके लेने के लिए, तो चाइना की इन्वेस्टमेंट है, तो वॉर ही पाकिस्तान पे हुआ है, चाइना पे भी होगा, मामला फंस गया यहाँ पे। तो चाइना फिर वॉर में शामिल होगा। डोंट यू थिंक दैट इट विल बी मोर कॉस्टली अफेयर? तो माय डियर फ्रेंड, बोथ आर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट, that is reason war is not an option. In diplomacy we want to maximize interest. If cost is more, जिसमें भी कॉस्ट ज़्यादा लग जाए, बहुत अच्छा शर्ट खरीदे लेकिन बहुत महंगा, तब अच्छे, तुम मार्केटिंग करने वाले आदमी नहीं हो। बेस्ट शर्ट खरीद के लाओ चीपेस्ट प्राइस पे, चीप एंड बेस्ट। तो ये तो स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की ना, सेम हियर। तो डोंट बी इमोशनल कि पीओके कैसे ले लिया, मैं ले लूँगा, बम मार दूंगा, ऐसे इमोशनल नहीं हो सकते। इसलिए अगर घर आपके आपके आपकी ज़मीन का किसी के साथ डिस्प्यूट हो, बी काम एंड कूल, लेट अस एनालाइज द कॉस्ट बेनिफिट। अब पता चला उस ज़मीन के चक्कर में इतनी लिटिगेशन हो गया, कॉस्ट उससे ज़्यादा वहाँ लग गया, लीव इट। अच्छे पढ़ लिख के बनोगे, ऑफिसर बन जाओगे, पता नहीं कितनी ज़मीन खरीद लोगे। देयरफॉर डो नॉट हैव ए शॉर्ट साइटेड अप्रोच, डोंट हैव ए इमोशनल अप्रोच, वेट फॉर अ टाइम, then cost benefit. Is a war is not an option in diplomacy, war is a last option. और आजकल तो कहा भी जाता है ना कि there is a two way to fulfill our national interest, one is a less costly, one is more costly, तो अप्लाई कर लो। इसलिए हम फॉरेन पॉलिसी वैसे एनालाइज नहीं कर सकते ना, जैसा कि सामान्य यूट्यूब में लोग कहते हैं अब तो हम चाइना से लड़ ही लेना चाहिए, अब तो 2-4 बम मार देना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है फॉरेन पॉलिसी में, नहीं। कॉस्ट में वेरी डेंजरस। रसिया का देख लो, बस इसी बात से एग्जाम्पल लग जाएगा। यू कैन नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, नेबरहुड, neighborhood is more important than distant relative. Neighborhood is more important than distant relative. And due to geopolitical factors, Nepal and Bhutan are the buffer state. Nepal and Bhutan are the buffer state. Buffer state located between China and India. China and India, full stop. And we have a adversarial relation with China. We have an adversarial relation with China. Therefore, we have an adversarial relation with China. Therefore, Bhutan and Maldives
becomes. Therefore, Bhutan and Nepal. Bhutan and Nepal becomes. Bhutan and Nepal becomes important for the strategic interest of India. Bhutan and Nepal becomes important for the strategic interest of India. That is first example of geopolitics. And why neighborhood first is the first example. Buffer state simply, इसे देखो, always learn the geopolitics. जो इस रोम बैठते हैं geopolitically they are more safe. जो इस रोम बैठे इंडियन ओशन में है, कृष्णा इज वेरी क्लेवर. ही ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम सीट. कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो गेट सामने, गेट तोड़ के भाग जाएगा. ये लैंड लॉक, लैंड लॉक. लैंड लॉक का मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस द ओशियन. लैंड लॉक हो गया. एंड बफर, जब भी बैठो देख लो. देखो प्रदीप, दुबला पतला कोई बात, दो हट्टे कट्टे लोगों के बीच बैठ गया, दबा देगा दोनों लोग मिलके. दैट इज जियो पॉलिटिक्स. क्या? आई अप्रिशिएट योर पॉजिटिव अप्रोच, बट लर्न समथिंग फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स. लेकिन मेरे बच्चे, मतलब ऐसा कुछ है, ये इमोशनल हो जाता है, उसको लगता है मैंने इसको कैसे वीक कह दिया. ऐसा नहीं है. और मेरे बच्चे देखो, यही जियो पॉलिटिक्स है. बफर स्टेट, लैंड लॉक, अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है. इंडियाज मेजर पावर, चाइनाज मेजर पावर कैसे तय होगा? हमारे मोहल्ले में जो हमारे पड़ोस में है वो चाइना को टी पर बुलाता है. हमें बुलाना चाहिए चाइना को? हमें बुलाना चाहिए. तो इसीलिए जब चाइना, कम से कम ये जो बफर स्टेट होता है, भूटान, बिकॉज ऑफ भूटान एंड नेपाल, चाइनीज एंड इंडियन आर्मी, दे आर नॉट कन्फ्रंटिंग विथ ईच अदर. एटलीस्ट इज बफर स्टेट. बफर स्टेट का मतलब होता है कि वी आर अनेबल टू कन्फ्रंटिंग विद द एडवर्सरी बिकॉज ऑफ सम न्यूट्रल पावर. और यही जियो पॉलिटिक्स है. वंस आई वॉज विजिटिंग नेपाल, once I saw a hoarding, welcome to Nepal, I was very happy. Then there was the next hoarding, gateway to China. This was not good for India. Nepal should not be gateway to China. नेपाल तो अपने इन्फ्लुएंस में होना चाहिए ना. अब सीधी सी बात है, आप भी गांव का प्रधान बनना चाहते हो, पड़ोसी प्रधान बनना चाहता हो. रिमेंबर, दिस इज नॉट स्टडी ऑफ एथिक्स. आप कहोगे सर ये कौन सी बात कर रहे हो, हैव लव, पार्टनरशिप, सबका साथ सबका विकास, ये सब जियो पॉलिटिक्स में नहीं चलती. और यही नेहरू क्या करते थे. नेहरू यही क्या करते थे. यू नो द पास्ट. मेरे बच्चों, जो सीधा होगा वो पहले मरेगा. इसे मैंने पहले कह दिया, मोहल्ले में सीधा साधा होकर नहीं रहना है. और अगर आपको फैमिली में लोग ऐसे कह रहे हैं ये हमारा बच्चा है, ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, हम्बल, नाइस, then you can know that there is some character, the problem of some characters. क्योंकि आपको लोग कैसे कैसे आप किस बात में सक्सेस है कि जब लोग कह रही है बहुत खुराफाती से लगना मत. दिस इज जियो पॉलिटिक्स. नो बडी इज एबल टू अटैक ओवर योर इंटरेस्ट. दे शुड हैव ए फियर इन माइंड. और फियर माइंड में ही होता है, और वो फियर जनरेट करना पड़ता है. मोहल्ले में सीधे साधे बन के रहोगे. नेहरू थे, देख लो क्या आउटकम हुआ. दैट इज ए जियो पॉलिटिक्स. फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड, इंडिया is only country in the world India is only country in the world which is sharing a border with India is only country in the world which is sharing a border with two hostile neighbors. Which is sharing a border with two hostile neighbors, which are sharing with two hostile neighbors which are having the nuclear weapons.
which are having the nuclear weapons, in bracket Bipin Rawat, General Bipin Rawat. Two hostile neighbors, that is said by General Bipin Rawat. Next point. "21st century belong to China." 21st century belong to China. And Chinese threat is no longer located. Chinese threat is no longer located in the Himalayan range only. Chinese threat is no longer located in the Himalayan range only, but China is making her presence. China is making her stronger presence in Indian Ocean. China is making her stronger presence in the Indian Ocean. Therefore, Sri Lanka, Maldives, become crucial for the maritime security of India. Sri Lanka, Maldives become crucial for maritime security of India. Crucial for the maritime security of India. फिर भाई जियोपॉलिटिक्स की बात आ गई. एंड लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. तो अब आप देखो, एवरीवेयर वी आर हैविंग वाई नेबरहुड फर्स्ट. Every reason is same. We have to ensure our presence in the Indian Ocean too. We have to maintain our security in the Himalayan range too. And next point. Foreign policy. Foreign policy is the external projection. Foreign policy is external projection of our internal needs. Foreign policy is an external projection of our internal needs. And India is still facing the crisis of internal security. Particularly in Kashmir and Northeast. And Myanmar is now in the middle of civil war. And Bangladesh. Myanmar is now in the middle of civil war, and Bangladesh also becomes unstable. Bangladesh also becomes unstable due to ouster of Hasina government. Due to exiting of Hasina government.
अब देखोगे, दैट इज द पॉइंट, दैट इज जियो पॉलिटिकल थ्रेट एंड दैट इज रीजन. अब देखोगे, if there is a, देखो why neighborhood is very important, we can analyze the same picture from other perspective. You know, Poland is unnecessarily trapped in the war. Now Poland is having almost 15 lakhs people who are crossing from Ukraine to Poland. Poland तो बिना मारे मरा. बस सिंपल सी बात है. देखो, नेपाल एंड भूटान बोथ आर लैंडलॉक टू बफर स्टेट टू. लेकिन लैंडलॉक का मतलब है एनी स्टेट विच इज नॉट हैविंग देयर एक्सेस टू द ओशियन. लैंडलॉक, लॉक बाय लैंड. अफगानिस्तान लैंडलॉक, सेंट्रल एशिया लैंडलॉक. और अब देखोगे, लैंडलॉक होना जियो पोलिटिकल चैलेंज है. दिस इज ऑल्सो जियो पॉलिटिक्स. यू नो दैट why India is having one of the largest naval force in this world because of our geopolitics in Indian Ocean. अब जरा नेपाल को देखो, why geopolitics saves the foreign policy. That is good example. तो अब देखोगे नेपाल, नेपाल आपको पता है नेपाल के पास कोई नेवल शिप है या नहीं है? हो ही नहीं सकती. जैसे कि आप डेजर्ट में रिवर ढूंढ रहे हो, नहीं मिल सकती. और जैसे रिवर में आप, जैसे आप ओशियन में आप प्लेन ढूंढ रहे हो, नहीं हो सकता. वैसे है नेपाल इज ऑल्सो लैंडलॉक टू. एंड तो लैंडलॉक की प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेड, व्हाट इज चीपेस्ट ट्रेड इन द वर्ल्ड, दैट इज थ्रू ओशियन. बट चीपेस्ट ट्रेड तो ही है, उसके बाद रेल है, उसके बाद रोड है, उसके बाद एयर है. मोस्ट कॉस्टलेस इज एयर. और ज़रा सोच के देखो, जियो पॉलिटिक्स, समुंदर है, फिश फ्री ऑफ कॉस्ट. समुंदर है, ऑयल एंड गैस. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है ना कि आपके पास कम टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो नहीं होगा, कम से कम वन साइड वी आर इंश्योर, वेरी सिक्योर. तभी आप देखोगे सारा, इफ यू लुक फ्रॉम द पास्ट, फर्स्ट डोमेन ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट डोमेन ऑफ इनसिक्योरिटी दैट वी हैव फेस टुवर्ड्स दिस बॉर्डर इन पास्ट, सारे अटैक तो इधर से आए हैं. इन 62 चाइना, देर आफ्टर 1999, after Kargil crisis, and moreover after 2008 Mumbai terrorist attack, now we are too much focusing over security of ocean. Nepal and Bhutan both landlocked too, and both buffer state. Buffer state means locating between Rey Mysterio and John Cena. These are two titans. इनके बीच में जो आए क्या होगा? मरेगा. अब देखो, जियो पॉलिटिक्स ऐसे फॉरेन पॉलिसी शेप करती है. नेपाल का अप्रोच क्या होगा? नेपाल देखो, जियो पॉलिटिक्स ऐसे फॉरेन पॉलिसी शेप करती है बिकॉज दे जॉन सीना एंड ग्रेट खाली. तो अगर ये दो मेजर पावर हैं तो नेपाल क्या सोचेगा? अगर इनके बीच दोस्ती हो गई, दिस इज नॉट गुड फॉर नेपाल एंड भूटान. यू नो व्हाई? नेपाल को लगे अगर भाई इनके बीच दोस्ती हो गई तो हमें ऐसा है ना कि बिल्कुल डिमार्केट कर लें, आधा इधर आधा उधर, जाओ नेपाल खत्म. That is a security dilemma. Geopolitics create a security dilemma. And what is security dilemma? In both the case we are insecure. Having the weapons, without the weapons. यही तो security dilemma है. Nation is a powerful, China is a powerful. China powerful बन रहा है तो हमें डरने की जरूरत है कि नहीं? Security dilemma. आपका जो नेबरहुड में रहने वाला कोई आपका नेबर है, वो क्या कर रहा है? रोज ही गन खरीदे जा रहा है और मॉर्निंग वॉक कर रहा है गन लेके टॉप फ्लोर पे, और आपने देखा, एंड यू आर बिकमिंग वेरी हैप्पी. यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर. आपका नेबर बंदूक लेकर घूम रहा है एंड यू आर फीलिंग हैप्पी. समथिंग वेरी रॉन्ग विथ यू. आपके नेबर के पास अगर एक गन है तो आपके पास अगले दिन एक गन होनी चाहिए, या तो नेबरहुड छोड़ दो. क्योंकि वो गन अगर आपका पड़ोसी मिल के दे, चिंता मत करना, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं तो और समझ लेना तो तुम्हारे लिए ही है. यही तो जियो पॉलिटिक्स है. तो चाइना, इफ चाइना इज राइजिंग, दैट इज क्रिएटिंग सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया. जियो पॉलिटिक्स. तो बफर स्टेट और लैंडलॉक बोथ आर द पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स. लोकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स. साइज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स. साइज में कैसे है? अगर इंडिया भी देखो, जियो पॉलिटिक्स तो ही है. एंड व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स?
Let us see. Britain became one of the largest naval power in the world because of the geopolitics. ब्रिटेन क्या हुआ? ब्रिटेन कभी यूरोप के झगड़े में फंसा ही नहीं बिकॉज ऑफ इंग्लिश चैनल, जियोपॉलिटिक्स है। अगर इंडिया के पास इतना बड़ा, और ये देख लो, वी आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड रूट, हम चौराहे पर हैं, समझ लो, हाईवे पे हम हैं। और हाईवे पे है इसका मतलब हमारे मोहल्ले में होके सब जाएंगे। चाइना को ही बार बार आना पड़ता है। एंड मलक्का स्टेट इज़ ए वेरी थ्रेट फॉर चाइना। अभी सिंगापुर में गए थे तो सिंगापुर के पीएम ने क्या कहा, आजकल इधर दिखते नहीं, तो हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट इनके साथ है, जब हिमालय पर वॉर होगा तो चीन को अपने मोहल्ले में घेरेंगे। और क्या है? इंडियन ओशन है। जियोपॉलिटिक्स, that is upon and 21st century because of Ukraine crisis, geopolitics is very much visible. Geopolitics पे China is not having the better location than India. यूएस की लोकेशन बेस्ट है, एक तरफ अटलांटिक है, दूसरा पैसिफिक है, एक तरफ मैक्सिको, दूसरा कनाडा। यूएस इतना सिक्योर है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। चाइना इज हैविंग द नेबरहुड ऑफ मोर देन 16 कंट्रीज, उसमें भी टर्मोइल चलता ही रहता है, तो चाइना इज नॉट वेरी सिक्योर। इंडिया इज़ कंपेरेटिवली फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। हमारा साउथ एशिया तो बिल्कुल बदनाम है ना, नोटोरियस है। हमारा साउथ एशिया नोटोरियस कैसे है? न्यूक्लियर वेपन के लिए, डिज़ास्टर के लिए, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर, डिजीजेस, इन सब के लिए जाना जाता है। एंड थैंक्स टू पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। एंड आई विल टेल यू स्टोरी। आपको लगे नो सर वाई अननेसेसरी वी आर ब्लेमिंग पाकिस्तान। बस एक एग्जाम्पल आपको बता दें, दैट इज़ रिटन बाय हुसैन हक्कानी, the person from Pakistan. He was a deputed ambassador in US. तो हुसैन हक्कानी इज़ वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि बिकॉज देखो अभी तो गवर्नमेंट में आप कह सकते हो कि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेरी मच टॉलरेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन नेहरू के लिए तो बात तो नहीं कह सकते थे। नेहरू वॉज मोस्ट पीसफुल पर्सन एवर बॉर्न इन दिस लैंड। मतलब इतना तो कोई हेड ऑफ स्टेट शायद ही कोई रहा होगा इतना पीसफुल, एक्सेप्ट वुडरो विल्सन। Once Nehru went to US, Nehru was looking for MIT, और पाकिस्तान जब US जाता था तो उसको चाहिए था F-16। ये दोनों के अप्रोच का फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान तभी तो मिलिटरीली पाकिस्तान वॉज वेरी पावरफुल। कैन यू इमेजिन इन 1965 what was result of Indo-Pakistan war that was unknown? Can you imagine a small size of a country like Pakistan, even they can dare to attack over India? That is something very objectionable. और वार जीता कौन ये भी नहीं पता था। That shows that why we are ignoring the geopolitics at that time. तो वो तो हमारे लिए फिर चैलेंजिंग था। ये तो जियोपॉलिटिक्स का इशू है, पूरे आईआर में जियोपॉलिटिक्स तो चलता है। तो आपके लिए जो करंट अफेयर होता है फॉर मी इट्स नॉट करंट अफेयर। अब हाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन बांग्लादेश की हो तो वही रहेगी ना, वो तो पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। एंड वंस बांग्लादेश इज फ्रेजाइल, एंड बांग्लादेश इज लोकेटेड इन दिस नॉर्थ ईस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, नॉर्थ ईस्ट इज लैंडलॉक, इंडिया इज नॉट लैंडलॉक। एंड कैन यू इमेजिन द जियोपॉलिटिकल थ्रेट ऑफ इंडिया? नॉर्थ ईस्ट में देखो हमारे यहाँ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम कहाँ पे है अभी, इसलिए देखो अभी जो रेल लाइन जा रही कश्मीर के लिए, वाई इट इज़ वेरी वाइटल। अभी तक क्या था, इंडिया इज अ लार्जर कंट्री देन पाकिस्तान, but we are unable to mobilize our armies in Kashmir as faster as Pakistan can do, because there was no direct access from Jammu to Kashmir. Kashmir was more accessible from the side of Pakistan. Before independence, there was a route for entering to Srinagar from Sialkot. There is no route from Jammu. और ये जम्मू का रूट तो 6 महीने बंद ही रहता है आपका। अब बताओ पाकिस्तान वार कर देगा, 6 महीने वेट करेगा कि बर्फ़ आप खोलो? जियोपॉलिटिक्स। तभी रेल लाइन बन रही है, ऑल वेदर रोड। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान क्या है, ऑल वेदर रोड होनी चाहिए। अक्टूबर कभी आप कश्मीर को जाओ तो सितंबर अक्टूबर में नेशनल हाईवे पे तमाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आप देखोगे कि सारे ट्रक जाते रहते। क्यों? वहाँ पे ऑयल की सप्लाई, क्योंकि अक्टूबर के बाद कोई ट्रक जा ही नहीं सकता। जियोपॉलिटिकली वी आर वीकर इन कश्मीर, तभी ट्रेन चल रही है। दैट जियोपॉलिटिक्स। आपको लगता होगा ट्रेन टूरिज्म के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड दैट, बट नज़रिया दोस्तों, नज़रिया बदला तो नज़ारे बदल जाते हैं।
आवर वे ऑफ लुकिंग थिंग्स इज डिफरेंट. हाँ, कोई इकोनॉमिक्स स्टूडेंट इस बात को ऐसे भी देख सकता है, नो टूरिज्म बढ़ेगा, अनडाउटली ट्रेड होगा, एक्सेस लोगों का होगा, तो अनडाउटली इट विल बेटर. बट फ्रॉम जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी बेटर हाउ वी कैन ट्रांसपोर्ट आवर मिलिट्री इक्विपमेंट टू कश्मीर वेरी इजली. दैट वॉज नॉट पॉसिबल. और नॉर्थ ईस्ट को आप देखो, कश्मीर इज अ वल्नरेबल. नॉर्थ ईस्ट टू, नॉर्थ ईस्ट का 99% टेरिटरी दैट इज सराउंडेड बाय द फॉरेन कंट्रीज. Only 1% territory of northeast is attached with India. सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इतना क्रिटिकल कंडीशन किसी के ही नहीं है. तभी आप देखोगे पाकिस्तान को फ्रेंडली हम बना नहीं सकते, बिकॉज जुल्फकार अली भुट्टो सेज दैट वी आर गोइंग टू फाइट विथ इंडिया फॉर 1000 years. थैंक्स गॉड ओनली 75 years gone. वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट 925 years. तो पाकिस्तान चेंज होगा नहीं, दैट इज़ वेरी क्लियर, वो हो नहीं सकता. दूसरी बात है, बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे जा रहा है पहला, और कम से कम म्यांमार को तो स्टेबल बना ले. इसलिए आप देखोगे दिस इज ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट जियो पॉलिटिक्स, कश्मीर जियो पॉलिटिक्स. तो जब हमारा इंटरनल प्रॉब्लम रहेगा तो एक्सटर्नल रिलेशन हॉस्टाइल रहेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी. दैट इज रीजन वी आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश गुड रिलेशन विथ बांग्लादेश, विथ म्यांमार. तभी तो आप देखो जुंटा गवर्नमेंट के साथ यही जियो पॉलिटिक्स है. अब आपको क्या लगता है कि what approach of India should be towards Myanmar? Why India is very much recognizing? अभी मैं कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था, तो लिबरल क्या कहते हैं, ओ माई गॉड इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. वाई वी आर, ओ माई गॉड व्हाट इज आवर फॉरेन पॉलिसी? वी आर अननेसेसरली सपोर्टेड Sheikh Hasina. We are unnecessarily made more favorable decision for Sheikh Hasina, and she was not democratic. She was a harassing democratic institution. And why we are having junta government with Myanmar? Because that government is not democratic. अरे मेरे बच्चों, ideals are more important or geopolitics? Geopolitics. इस याद रखना, ideals और ideals बस किताबों में लिखने के आते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो हैविंग देयर कैलकुलेशन. यही तो यूएस ने कहा, वी आर वेरी फ्रेंडली टू यूएस. यूएस हैज इम्पोज सैंक्शन ओवर म्यांमार. और अभी एस जयशंकर गए थे तो यूएस में खूब तारीफ हुई, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. बिला वजह आपकी तारीफ होने लगे, समझ लो कोई लोचा है. हम उल्टा करते हैं, जैसे कोई हमारी तारीफ करना, ओ माय गॉड यू आर वेरी स्मार्ट. हाँ, मैं तो हूँ ऐसे ही, मैं तो एकदम हूँ. हम दैट इज ए डिप्लोमेसी. कोई बिला वजह आप कोई फ्लैटरी कर रहा है, समझ लो कुछ लोचा है, अगले बार में डिमांड कुछ अच्छा होगा. और यू नो दैट व्हाट इज ए पॉलिटिक्स. अब किसी से चाय पीना हो, कह दो ओ माय गॉड तुमको देखता हूँ तो बस दिन बन जाता है मेरे दोस्त, कहाँ थे इतने दिन तक, बताओ मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, चलो अच्छा चाय पीते हैं. और उसी पे तारीफ किए जा रहे हो, पैसा और कहेगा और भी कुछ खाओगे क्या, कहने बस चाय ही पी लेते हैं. तारीफ करना पर्पस था, चाय पीना पॉलिटिक्स. एज ए शंकर वेंट इन यूएस, तो यूएस ने क्या कहा, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर वेरी मच प्राउड विथ फॉर इंडिया, and US is the oldest one, India is largest, and we want to shape this world from on the base of rule based world order. जयशंकर ने समझ गया कि कुछ फंसाएगा ये मामला ये. He was not smiling at all. तो लास्ट में उसने क्या कहा, then why you are supporting Russia and Myanmar? Because they are having dictatorship. मेरे दोस्तों देखो, यही मैंने डे वन से कहा था, फ्रेंडशिप करने का आधार क्या है. कुछ लोग कहते हैं कि इनसे पार्टनरशिप क्यों नहीं हो, हमारा विचार उनसे नहीं मिलता था, दुनिया में किसी से विचार आपका नहीं मिलेगा. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एटीएम मिलना चाहिए, विचार नहीं मिलना चाहिए. दैट इज़ अ इंटरेस्ट, प्रैग्मेटिज्म. अब जो आपको सिक्योरिटी कर दे वही आदमी आपका दोस्त है, वो आपके मोहल्ले का हो ना हो. आइडिया से क्या मतलब, आइडिया से बच पाओगे, आइडिया से बच नहीं पाओगे. कोई पावरफुल दोस्त रखो साथ में. नहीं पता ऐसा दोस्त रखा जिसका आइडिया ही मिलता है, शेरो शायरी मिल रही है खूब, और बाहर से अटैक हो गया तो दोनों से शेरो शायरी करते रहोगे और पेट पट के निकल जाओगे. जियो पॉलिटिक्स क्या लिखा आपने. तो जितनी एक ही बात को जितना एक्सप्लेन करना हो वी कैन एक्सप्लेन. दैट इज अ पॉइंट. आपके सिलेबस में क्या लिखा गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. जियो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट, एंड वाइल स्टडिंग नेबरहुड इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट. तो जियो पॉलिटिक्स तो कहीं भी आप देख लो. Next point. I will tell in Bangladesh.
क्योंकि पूरी आपको हिस्ट्री बता देंगे व्हाट इज अ थ्रेट. Here we are just have a glimpse that what is our overall approach towards neighbors. Then Bangladesh, Pakistan, China, we are going to deal with every nation separately. Let's next point. Just you can add one thing. एक बात याद रखना, जियो पॉलिटिकल अप्रोच अपना लें. आपके बगल कौन बैठा हुआ है? एनिमी. Geopolitics. You may like it, may not like it, but that is fact set by Kautilya. इसलिए जो पास में बैठा हुआ है, बी केयरफुल. और जो नेबरहुड के उस साइड में है, वो आपका दोस्त है. That is also geopolitics. Enemy is enemy, friend, friend's friend, friend. Friends, friend, friend. Enemies, enemy, friend. Enemies, friend, enemy. Geopolitics. Kautilya was the best proponent of geopolitics. But the matter of fact is that Nehru was not adopting the principle of Kautilya. भाई वो बाहर पढ़ के आए थे ना, कौटिल्य को नहीं ध्यान दिया उस समय. नाउ यू कैन राइट. क्या लिखा? According to geopolitics, neighborhood is an enemy. Neighborhood is an enemy which can create a security threat. Which can create a security threat sooner or later. Sooner or later. But in days of liberalization and globalization, geopolitics may not be appropriate. Geopolitics may not be appropriate for analyzing the relations between the nation state. Geopolitics may not be appropriate for analyzing the relation between nation state. अब देखो ये दो अप्रोच हमेशा चलता है. Whatever geopolitics we are telling you, I want to tell you some exception. आपको पता है इसी जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में रसिया लड़ रहा है, इसी जियोपॉलिटिक्स चक्कर में वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम है, इसी जियोपॉलिटिक्स चक्कर में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना में प्रॉब्लम है. डोंट यू थिंक दैट? let us think that was said by once Deng Xiaoping from China, Hu Jintao from China. और अब देखोगे पड़ोसी को थ्रेट समझते रहोगे या पड़ोसी के साथ दोस्ती करके ट्रेड कर लिया जाए. अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी मिसट्रस्ट. तो जो जियो पॉलिटिक्स को मानता है ना, वो हर जगह फियर करेगा. अब आप मैंने कह दिया पड़ोसी दुश्मन है, आप यू बिकेम मोर अलर्ट कि सच में यार उसने बंदूक तो नहीं रखा है क्या. अब कभी मेट्रो में बैठोगे तो एक बार आपके दिमाग में आ ही जाएगा यार बगल में कौन बैठा है, क्योंकि मैंने आपके दिमाग में बात जियो पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन मिसट्रस्ट. अब जो इसीलिए देखो कभी भी पुलिस ऑफिसर के पास जाओ, उसको बुके भी लेके जाओ तो भी पहले ध्यान से देखेगा यार क्यों बुके लाया, क्या इसमें कुछ मिला तो नहीं है, अभी क्यों लेकर आया. ओह माय गॉड, समबडी इज कमिंग विद बुके. अरे वेलकम करो यार उसका, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल. अननेसेसरी उसमें डिस्ट्रस्ट पैदा कर रहे हो. मिसट्रस्ट पैदा करने से बड़े रिलेशन छूट जाते हैं. तो ये देखो ये मिसट्रस्ट प्रॉब्लम है. कैसे प्रॉब्लम है? चाइना's rise may be translated into rise of Asia. Don't you think it is possible?
ओ माय गॉड, चाइनाज राइज एन अपॉर्चुनिटी वंस अपॉन अ टाइम। और देखो जियो पॉलिटिक्स में कहाँ प्रॉब्लम आती है, यूरोप इज लर्निंग द प्रॉब्लम ऑफ जियो पॉलिटिक्स आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों था जियो पॉलिटिक्स में, और इन लोगों ने एक को कंटेन करते करते दूसरे को कंटेन किया, उसमें सब लड़के सब मरे। और अभी अब देखोगे, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात मान ली जाए, इन यूरोप, फ्रांस एंड यूके दे आर कीपिंग न्यूक्लियर वेपन। अगर हम जियो के कैसे जियो पॉलिटिक्स इज मिसनोमर, वाई जियो पॉलिटिक्स मे नॉट बी अ वायबल अननेसेसरी थ्रेट, आर्म रेस। और पता चला कि हैव यू सीन ए पिक्चर वेयर टू बार्ड्स आर फाइटिंग फॉर अ कॉम्ब, बेकार की बात हो जाएगी। क्यों ऐसा है? अगर आप देखोगे, हमने यही जब आपको बताया कि इफ चाइना इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट इन सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। तो भाई यूके और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है, भाई जर्मनी नेबर वेंट फॉर न्यूक्लियर वेपन, भाई जर्मनी का नेबर ही तो है। जापान, जापान इज वेरी मच क्लोज टू नॉर्थ कोरिया, तो भाई जापान वॉज नॉट परस्यूइंग अ न्यूक्लियर वेपन। इसलिए मेरे बच्चों देख लो जरा, दुनिया में जो जियो इकोनॉमी के पीछे रहा उसका राइज हुआ जर्मनी। जर्मनी वॉज ऑलमोस्ट डिवास्टेटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वाई? बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। एंड look, in 1970s, what was the success story of a rise of Germany? Because of geo-economy. Trade, businessmen, learn something from Marwadis. मेरे बच्चों, मारवाड़ी, ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडर। मारवाड़ी क्या करेगा, प्यार से बिजनेस करके अपना निकल लेगा, और यहाँ लठ भांज रहे हैं। लठ से काम चलेगा या प्यार से? जस्ट यू काउंट द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन, चाइना का भी जो ग्रोथ हुआ है, इकोनॉमिक कारण हुआ है आफ्टर 1979, दैट वाज लास्ट व्हेन चाइना अटैक ओवर वियतनाम। आफ्टर चाइनीज अटैक ओवर वियतनाम, चाइना इज नॉट अटैकिंग ओवर एनीवन, एंड दिस इज a lesson of the entire world. And only history will tell that whether Russia is getting advantage from that Ukraine crisis or Russia is endangering her own interest. Only time will tell. इसलिए मेरे बच्चों एक खास बात है, आप करोल बाग में रह रहे हो तो रिफिल खरीदने कहाँ जाओगे? जहांगीरपुरी, यही आप आसपास खरीदोगे ना। नाउ आई एम टेलिंग यू द पिक्चर, यहाँ से ट्रेड करो। और पाकिस्तान पाकिस्तान को भी यही बताने की ज़रूरत है। हमारी बहुत सारी फिल्में कौन देखता था? पाकिस्तान के लोग। और पाकिस्तान की सारी कैसेट्स कहाँ बिकती थी? इधर। यू लुक द मूवी हैप्पी, भाग जाएगी। हैप्पी सेइंग दैट ओ माय गॉड, पाकिस्तान इज जस्ट लाइक इंडिया। बगल में रहोगे, कल्चर एक जैसा है, जोग्राफी एक जैसा है। अब आप ट्रेड करोगे ब्राज़ील से, शिप जाएगा 1.5 महीने में, और जो आपका टोमेटो पोटैटो होगा वो हो जाएगा बेकार। यहाँ भेज दो ना पाकिस्तान के पास, साड़ी, टेक्सटाइल। और अब देखो यही तो हुआ, बांग्लादेश बिकेम द हब ऑफ टेक्सटाइल। ये कैसे हुआ? इंडिया से कोऑपरेशन के साथ हुआ। अभी जियो पॉलिटिक्स क्या करेंगे? ब्लेम गेम, पॉलिटिक्स, India is a threat. If we are recognizing China as threat, Pakistan is saying India is threat, India is saying that Kamal, or Bangladesh is saying that India is threat, and then Sri Lanka is saying India is threat, Maldives saying that, ये लफड़ा ही है यार। तो इसलिए बिश्नोई का गैंग ज्वाइन करोगे या फिक्की ज्वाइन करोगे? 2 ऑप्शन है आपके पास। यू नो बिश्नोई का मतलब जानते हो? मेरे बच्चे वो सी लॉरेंस बिश्नोई के एक गैंग है, और गैंग क्या है? क्वाड है, जियो पॉलिटिक्स से। कमाल की बात है। या फिक्की, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ट्रेडर्स बनो। मोस्ट इज बीन मोस्ट इफेक्टिव वे टू फुलफिलिंग द नेशनल इंटरेस्ट। तो ट्रेड किसके साथ करोगे भाई? नेबरहुड के साथ करो। नेबरहुड के साथ करोगे, उनको फ़ायदा, आपको फ़ायदा। इसलिए व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? आप नोट्स लो, पार्टनर को शेयर मत करो, क्योंकि पार्टनर मिसट्रस्ट है, वो पास हो जाएगा तो। एंड व्हाट इज जियो इकोनॉमी? सबका साथ। आप IR का नोट्स बना लो, उसको शेयर कर दो इकोनॉमी का, उससे जोग्राफी का ले लो और आप शेयर कर दो सोसाइटी का। collectively you can win the entire world. Best example is Europe. If 27 nation state can come together, then why not South Asia? यही तो जियो इकोनॉमी है।
That is the second way to look the entire picture. And why neighborhood is very important. अभी आप देखोगे 91 के बाद इंडिया का अप्रोच क्या है. Now you can write why neighborhood again important from geo-economic perspective. What we are discussing, why neighborhood is first. Then we will discuss our policy. I am not telling you what is the basic element of neighborhood first policy. Here we are only discussing why neighborhood first. Why, how, up to what extent. यही तो analysis है. Now you can write. Next head, you can change the heading. That is point. Realism may not be beneficial always. For Kautilya, how Bhutan can be very friendly towards India. Kautilya's principle is become very much irrelevant for analyzing the Europe, where 27 nations are coming together. That is point. Kautilya's analysis may not be perfect, and any approach of international relations is not perfect. Every approach is partial. क्या लिखा आपने? Next heading. Second heading. Multilateralism, this geopolitical concept comes very often because in geoeconomy talks about development of both sides. Yes. But geopolitical is more about like individual. Like your own See interest. what sometime what happens in geopolitics too, we make an alliance, but the purpose of alliance is different. That is military nature. बट इन जियो इकोनॉमी देयर इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ध्यान से देखने की बात है. आपके बगल में कोई ट्रेडर रहेगा तो ट्रेडर इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ थ्रेट फॉर यू. आपके बगल में कोई गैंग वाला आदमी रहेगा तो रोज उसके पास गन आती जाती रहेगी, आप थ्रेट करोगे. दैट इज पॉइंट. इकोनॉमी में इकोनॉमी जियो इकोनॉमी इज नॉट बिलीविंग इन हायरार्की ऑफ नेशन स्टेट. रिमेंबर, नो नेशन स्टेट इज बिगर, नो नेशन इज स्मॉलर. तभी आप देखो जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं बड़े ट्रेडर साथ जुड़ते हैं. छोटा ट्रेडर बड़े ट्रेडर को देख के थ्रेट फील नहीं करता, बट छोटा ट्रेडर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको क्रिएट करता है. तो जियो इकोनॉमी मीन्स इंटरडिपेंडेंस, जियो पॉलिटिक्स मीन्स सस्पेशन. और जियो पॉलिटिक्स में अलायंस होता है, बट अलायंस में नॉट बी लास्टिंग. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के देखो, रसिया एक बार अलायंस में आया फिर भागा. हिटलर भी तो आ गया था, रसिया नॉन एग्रेशन पैक्ट हिटलर और रसिया के साथ था, नहीं हुआ. तो अलायंस इज़ अ वेरी फ्रेजाइल आज. लेकिन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल. और आप देख लो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन वॉर बिकम वेरी मच कॉस्टलीस्ट. आजकल अर्बन वॉरफेयर ऐसा आ गया है कि वॉर में अगर आप फंस गए तो आप कुछ भी नहीं हो सकता आपका. यूक्रेन क्राइसिस बेस्ट एग्जांपल. अब वो ज़माना थोड़ा ही रहा कि जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, हर जगह पॉपुलेशन है लोगों की, तो वॉर करो कहाँ पे अब. नाउ वर्ल्ड हैज़ बीन चेंजिंग. दैट इज़ रीजन लर्न समथिंग फ्रॉम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया. देखो टू बेस्ट एग्जाम्पल. नॉर्थ कोरिया इज ओवर एम्फेसाइज ओवर जियो पॉलिटिक्स, डेवास्टेटेड. और जब हम आर्गूमेंट लिखते हैं तो यही सारी तो आर्गूमेंट होने चाहिए हमारे पास. नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया हैविंग द ऑलमोस्ट सेम population, same geography, but approach is a different. South Korea adopted geo-economy, trade, investment, business. South Korea is pursuing the policy of Marwadis, and North Korea is pursuing the policy of किस स्टेट का एग्जाम्पल मैं दूँ. अब नेगेटिव रूप में किसी स्टेट एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, अदरवाइज बच्चे बड़े इमोशनल हो जाते हैं. देखो everything is interrelated, but there is a separation too. In humanities, nothing is we can't have a tight water compartment. Interconnectivity is obviously there, but there is a difference. क्या लिखा आपने? हाँ, यस. देखो प्रॉब्लम क्या, देखो फिर इसको एम्फेसाइज में कर दूँ. Why geo-economy is very important? Again, from other perspective, same thing we can. एक बात याद रखना, जियो पॉलिटिक्स वाले जोग्राफी की बात करते हैं. दे आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट द वे हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग. आज व्हाट्सएप की दुनिया है, ट्रेड की दुनिया है, कनेक्टिविटी की दुनिया है. ये 100 साल पहले ऐसा नहीं था. बट फॉर जियो पॉलिटिक्स दे आर ओनली इंसिस्टिंग ओवर जोग्राफिकल फैक्टर्स. तो आपको लगता नहीं जिस सियाचिन के लिए हम लड़ रहे हैं वहाँ कौन सेटल होगा? एक अजीब सा गेम नहीं है. जियो पॉलिटिक्स मैड, बैड एंड डेंजरस. अरे भाई किसके लिए लड़ रहे हो भाई? सियाचिन कौन वहां रहेगा पहला?
और आप लड़े जा रहे हैं उनके लिए बिकॉज इन्वायरमेंटल डिजास्टर। अभी तो ऐसा आएगा सारे आइलैंड नीचे जाएंगे, तो खोजो जाके वहाँ नीचे आइलैंड। इसीलिए जियो इकोनॉमी इज़ मोर प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल सबके साथ। जब दुनिया बदल गई, वो व्हाट्सएप की दुनिया है, अभी दुनिया लड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती। अभी सेल्फी लेते को नहीं, ये 100 years इट वॉज नॉट अवेलेबल अर्लियर। कनेक्टिविटी, ट्रेड, जितने चीज़ें जुड़ गई, 24/7 टेलीविजन चैनल, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये अवेलेबल था 100 साल पहले। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसे ड्रोन आ रहे हैं कि जो अब रोबोट आ जाएंगे तो एक बार वॉर शुरू हो गया, वॉर शुरू करना हमारे हाथ में होगा, ख़त्म करना हमारे हाथ में नहीं होगा। तो ये सब चेंज हो। डियो पॉलिटिक्स में ये बात नहीं मानी जाती। नाउ यू कैन राइट, क्या लिखा आपने, नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट। इंडिया, India is now 5th largest economy in the world. India is now 5th largest economy in the world. And aiming for third largest economy, or aiming to become third largest economy. Aiming to become third largest economy. And neighboring countries are most suitable for trade and business. Neighboring countries are most suitable for trade and business. Are more suitable for trade and business due to geographical proximity, are more suitable for trade and business due to geographical proximity and cultural closeness. Geographical proximity and cultural closeness. Moreover, trade and investment with neighboring countries is helpful for development and stability of neighboring countries. Is helpful for development and stability of neighboring countries. Full stop. Bhutan and Nepal are the two. Bhutan and Nepal are the two opposite examples in our neighborhood. Bhutan and Nepal are the two opposite examples of our neighborhood. Because Bhutan cooperated with India. In the field of hydropower project. But Nepal realized it very late. Nepal realized it very late. And Bangladesh
Bangladesh is the largest trading partner of India in South Asia. Bangladesh is largest trading partner of India in South Asia. In bracket almost $16 billion trade. Bangladesh is largest trading partner with India in a $16 billion trade. And India has surplus in trade with our neighboring countries except China. India has surplus in trade with our neighboring countries except China. Except China. और अभी आप देखो जियो पॉलिटिक्स में कैसे है. बांग्लादेश इज गुड एग्जाम्पल. अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स ऐसे रोक देंगे, देखो व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द इलीगल माइग्रेंट्स. देखो पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन. मैं देखो बी ओपन एंड बी कॉम्प्रहेंसिव. वाई इंडियंस आर गोइंग टूवर्ड्स कैनेडा, यूएस बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज. सेम थिंग फॉर इन द बांग्लादेश. अभी आप देखोगे व्हाट इज द जियो पॉलिटिकल अप्रोच. If what we are looking that we are going to fence the border and we have to prevent the illegal migration, that is almost difficult. Even there is a very porous border. Indo-Bangladesh border is most difficult because of even the border with Pakistan and China, that's more clearer. But it's very difficult to have a boundary with India and Bangladesh. और इंडिया बांग्लादेश के बारे में तो ये कहा जाता है जस्ट यू गो इन द बॉर्डर तो पता चला कि एक घर है, उसका किचन इंडिया में है और ड्राइंग रूम बांग्लादेश में है. ऐसा बॉर्डर है. इसका मतलब है कि हाउ यू कैन मेक ए स्टेबल बांग्लादेश. और इंडिया के पास आप देखोगे हियर इट इज टाटा इज टेकिंग ओवर जगुआर. दिस शुड बी द कम्युनिकेटेड टू आवर नेबरिंग कंट्रीज टू. इंडिया इज हैविंग वन द लार्जेस्ट एमएनसीज. वी आर नॉट कंपेयरिंग विथ एप्पल. फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज में तो वी आर हैविंग लार्जेस्ट एमएनसीज एंड दे आर वेरी मच ईगर टू इन्वेस्ट इन नेबरिंग कंट्रीज. एंड द ऑलमोस्ट every textile industry from India that is migrated towards Bangladesh. और देखो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हो गई, दैट इज़ मोर डेंजरस. आपको पता है नेपाल वुड हैव बीन द वंडर, और श्रीलंका, ओ माय गॉड, द वंडर ऑफ एशिया. श्रीलंका एंजॉय द जियो पोलिटिकल पोजिशन लाइक वाइज ऑफ यूए इन सिंगापुर. अगर आप जियो पोलिटिकल पोजिशन देखो, 3 की जियो पोलिटिकल पोजिशन दुनिया में बेस्ट है. सिंगापुर बिकॉज ऑफ द. अब देखो ये जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमी जो आपने सवाल पूछा था कि हाउ जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमी इज अ वेरी मच इट इज़ रिलेटेड. तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, सिंगापुर है. बिकॉज सिंगापुर इज बिकमिंग ट्रांजिट फॉर द एंटायर रीजन. और सिंगापुर इज अ वंडर. इवन नाउ द पर कैपिटा इनकम ऑफ सिंगापुर इज इक्वल टू यूके. दे आर री राइटिंग द सक्सेस स्टोरीज सिंगापुर because of their geopolitical position and because of their governance. बल्कि को यही geopolitical position श्रीलंका के पास थी. श्रीलंका is unable to develop because of their problem with ethnic problem, a Sinhala nationalism. तो यहाँ तो प्रॉब्लम उनकी आई. तभी आप देखोगे साउथ एशिया में कई बार अननेसेसरी जियो पॉलिटिक्स के थ्रेट ने नेशन स्टेट को फ्रेजाइल किया. और फिर यूए इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. यूएई को कहा भी जाता है कि इट इज़ द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. कोई शायद यूरोप और यूएस की ऐसी कंपनी नहीं हो जिसका हेडक्वार्टर यूएई में ना हो. जियो पॉलिटिक्स से तो है, जो भी इधर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ गुजरेगा वो किस देश को टच करेगा, यूएई. भाई पूरी दुनिया में शिपिंग बिगेस्ट शिपिंग रूट है, सारे शिपिंग इधर जाने हैं. और अगर आप गवर्नेंस का बैड एग्जाम्पल देखो, पायरेट्स फ्रॉम सोमालिया. तो पायरेट्स है और यमन है. यमन इज ऑल्सो हैविंग ऑलमोस्ट सेम पोजिशन बट यमन इज डिवास्टेटेड. सो जियो पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली फैक्टर. यमन की पोजीशन आप देखो, सोमालिया की पोजीशन देखो, उसी पोजीशन पे हैं वो, खराब हुए. इसका मतलब है कि नो सिंगल फैक्टर कैन मेक अ नेशन पावरफुल. लेकिन ये सारे एग्जाम्पल बताने का पर्पज क्या है.
India can develop their neighboring countries, and neighboring countries are very much realizing that India is an opportunity, is not threat. India is not behaving like a elder brother, or India is not behaving like a big brother, more like elder helping hand. तो यहाँ फ़ायदा होगा. अभी अब देखो बांग्लादेश was more became more stable because of economic prosperity, and you will be surprised to know that recently Bangladesh became the larger economy than Pakistan. ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान कैसे पीछे चला गया बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स. जब ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का देखोगे तो कहा भी जाता था कि विच वॉज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, लाहौर. लाहौर एक ऐसी सिटी थी पार्टीशन के पहले जहाँ मर्सिडीज़ दिखती थी, BMW दिखती थी, रोल्स रॉयस पार्टीशन पहले दिखती थी. भाई इंडिया का जो पंजाब था वहाँ द रिचेस्ट प्रोविंस था, वो पाकिस्तान को मिला था. बांग्लादेश को, जो आज का बांग्लादेश है, उसको तो मिला था बंगाल वाला एरिया. एंड बांग्लादेश कैन सरपास पाकिस्तानी इकोनॉमी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइमेसी ऑफ जियो इकोनॉमी. दैट इज़ बिकॉज ऑफ हसीना. हसीना हैज़ टू मच फोकस ओवर इकोनॉमी. यस, भाई देखो 10-15 साल में तो इकोनॉमी बनती नहीं. अनडाउटली सी वॉज अनएबल टू डाइवर्सिफाई हर इकोनॉमी, सो इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम. नो नेशन कैन बी टर्न आउट टू बी डेवलप इन ओवरनाइट, बट हर एफर्ट वॉज वेरी सिंसियर. इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप किया. बाकी क्रिटिसाइज़ करना है तो किसी को क्रिटिसाइज़ कर दो कि अडानी की सरकार और टाटा की सरकार से बिरला की सरकार. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. पॉलिटिकल सारे डिबेट्स होते हैं. ये आइडिया है कैसे नेपाल के डेवलपमेंट में इंडिया कंट्रीब्यूट कर दे, कैसे नेपाल को इकोनॉमिकली जोड़ लिया जाए. एंड दैट इज जियो इकोनॉमिक. देयर फॉर एवरी कंट्री इज लाइक अ अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडेड दैट वी शुड मेंटेन देयर कनेक्टिविटी. हमें क्या करना है वो तो हम देखेंगे. सो वाई इट इज़ अ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जियो इकोनॉमी. और बात सिंपल देखो, साउथ एशिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इंडिया इज इन फेसिंग ट्रेड डिफिसिट. यूरोप के अभी सीधी सी बात है, यूरोप इज इन पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम. तो यूरोप के साथ आप देखो क्या है, यूरोप तो बड़े सारे हमारे नॉन ट्रेड बैरियर लगा देगा, ह्यूमन राइट्स लगा देगा, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लगा देगा. दीज आर नॉन ट्रेड मेजर्स. तो यूरोप के साथ ट्रेड करना इतना आसान नहीं है. आसियान के साथ तो हम डिफिसिट में जा रहे हैं. चाइना वी आर हैविंग ह्यूज ट्रेड डिफिसिट. तो डोंट यू थिंक दैट वी आर हैविंग सरप्लस ऑफ ट्रेड इन नेपाल, भूटान, सबके साथ तो फ़ायदे में है. तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो इट्स EFTA में भी, देयर में भी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये में भी हो सकता है. लैटिन अमेरिका इतना दूर जा रहे हो, पास ही क्यों न किया जाए. दैट इज़ अदर वे टू लुक द रीज़न. दैट इज़ वन वे टू लुक द रीज़न. और इसी बात पे हम काम कर रहे हैं. तो देखो अब नेपाल के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि नेपाल की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, दुनिया का हर आदमी एवरेस्ट देखना चाहता है. कुछ दोस्तों के पास ऐसे ब्रांड है कि जो बिना एडवर्टीजमेंट कहते हैं. अदरवाइज वी हैव टू मेक एडवर्टीजमेंट फॉर अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट. नेपाल नेवर डज दैट. ये दुनिया में लोगों को पता है एवरेस्ट चलना है. एवरेस्ट चलना है तो होटल है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं. और श्रीलंका, ओ माय गॉड, वंडर ऑफ द एशिया. मतलब इतना ब्यूटीफुल आइलैंड कहीं है ही नहीं है. सब वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाया. Why they failed? Because of geopolitics. Simple reason is geopolitics. तो अब आप कहोगे सर नेबरहुड के साथ क्या होना चाहिए, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी? both can go in hand, but this is two approach. Why neighborhood first? Last point you can write. Due to emerging security threat, from neighboring countries, geo-economy or trade and business is more constructive and positive approach. Trade and business is more positive and constructive approach
for changing hostile approach of our neighboring countries. For changing hostile approach of our neighboring countries. For changing hostile approach of our neighboring countries. Third heading, recognizing India's major power status. Next heading. Recognizing India's major power status. Recognizing India's major power status. तो थर्ड, वाई नेबरहुड फर्स्ट जियोपॉलिटिक्स, वाई नेबरहुड फर्स्ट जियो इकोनॉमी, वाई नेबरहुड फर्स्ट India's status of major power. Why? First point you can write. Being a major power. Being a major power. India want to strengthen our relation. India want to strengthen our relation with US. With US, Russia, Japan, Germany, France, Therefore, India's periphery must be peaceful. Therefore, India's periphery must be peaceful. In bracket, MS Rajan. In bracket, MS Rajan. MS Rajan. One of the original propounder of NAM. लेकिन आप याद रखना, अगर नाम में से भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. Ideas is always more important. एक अभी रेफरेंस के तौर पर मैंने दे दिया, अगर ठीक है कि बात बन जाए तो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू वरी. तो देखो क्या है, पेरिफेरी मस्ट बी स्टेबल. ये बड़ा चैलेंज है हमारा. क्यों? यू कैन राइट, इफ इंडिया इज ओवर इंगेज, नेक्स्ट पॉइंट, इफ इंडिया इज ओवर इंगेज इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, if India is over engaged in our neighboring countries, thereafter we will not have enough time and energy for cultivating our stronger ties with major powers. तभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, वाई नेबरहुड फर्स्ट. लेकिन आप देखो, कई बार हमें लगता है कि इंडिया की पॉलिसी एंटी पाकिस्तान. अरे पाकिस्तान पॉलिसी इज ऑब्वियसली एंटी इंडिया. इंडियाज पॉलिसी शुड नॉट बी पाकिस्तान सेंट्रिक. पाकिस्तान स्मॉलर नेशन. न्यूज़ किसकी आनी चाहिए कि मेलोनी से मुलाकात हुई, सिंगापुर हम गए, जर्मनी गए, इंडिया इज मेजर पावर, ऑस्ट्रेलिया गए, ब्राज़ील गए, पूरी दुनिया खाली पड़ी है और हम किसके चक्कर में हैं? केवल नेबरहुड के चक्कर में है. पता चला कि पूरा दूसरा मोहल्ला बना सकते थे, लेकिन पड़ोसी के साथ पार्किंग के चक्कर में फंसे हुए हैं. पार्किंग के लफड़े से आगे नहीं निकल पाए. तब ये बात बहुत ज़रूरी है. रिमेंबर, इंडिया इज अ मेजर पावर. टाइम अगेन व्हाट वी आर एम्फेसाइजिंग और फैक्ट दैट इंडिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री एंड साइज डज मैटर. व्हाट के सुब्रमण्यम सेज दैट independent foreign policy lies in size of India. India cannot become the camp follower of any major power. Since we are major power, and let us see the power asymmetry in South Asia. That is very interesting in the world.
you see, you cannot imagine that every country is having same size and up same size power in any country region. In Europe, Germany is the most powerful. Germany is larger, but the population and economy of Germany and France is a gap is more narrower. तो जर्मनी की पॉपुलेशन 7 करोड़ होगी तो फ्रांस की 6 होगी, इतना ही डिफरेंस है. साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन ऑफ इंडोनेशिया इज 20 करोड़, देन मलेशिया 7. बट हियर इतना ज़्यादा इम्बैलेंस है. यूएस में चले जाओ, कहीं भी ले जाओ, इतना इम्बैलेंस नहीं है. इंडिया इज लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बिकॉज सी we are very much proud to announce that we are largest country in the world. Population, human resource. Maldives 8 lakhs. बताइए कोई सिमेट्री है? ऐसा सिमेट्री दुनिया में सिमेट्री कहीं दिखती ही नहीं. एंड देयर आफ्टर रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज वी आर हैविंग utmost importance, बट unnecessarily having full energy in neighboring countries. हर जगह लगे रहो भाई. MEA में वी आर हैविंग द लिमिटेड स्टाफ. सारे स्टाफ को अगर हमने सारा घुमा के पाकिस्तान में ही लगा दिया तो बाकी स्टाफ कहाँ बचेगा हमारे पास कि हम जर्मनी भेजें उनको. Therefore, remember that entire world is now open for India. So I unnecessarily engage ourselves. Don't be trapped in our neighboring countries. उनकी पॉलिटिक्स में हमें मतलब ही नहीं है भाई, हमें और भी रिलेशन साथ रखना है. दैट इज़ पॉइंट नेबरहुड फर्स्ट. और ये भी याद रखो, अगर देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर सपोज टू नेग्लेक्टिंग नेबरिंग. नो नो नो, दे आर प्रायोरिटी, दे आर फर्स्ट, बट वी शुड नॉट ओवर इंगेज. मतलब हर बात पे रिएक्शन देते रहे. मालदीव्स ने कुछ कर, इंडिया, अरे इंडिया मेजर कंट्री है, मालदीव्स करता रहे कुछ ना, इकट्ठे सेटल कर लेंगे. अब मालदीव्स की हर बात का हम जवाब दें, ऐसा नहीं होगा. लेकिन आप देखो, वाई इंडियाज रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज इज गुड आर इसेंशियल. अब यूएन में भी जाना है सितंबर में. यूएन में पाकिस्तान खड़ा होगा तो 55 बार कश्मीर का नाम लेगा. अगर यही काम बांग्लादेश, श्रीलंका भी करने लगेगा तो हमारी बेइज्जती होगी नहीं होगी. दैट मैनेजमेंट इज इसेंशियल. भाई पे याद रखो. और पाकिस्तान तो कहीं भी जाता है. अभी रिसेंटली पाकिस्तान वॉज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस फॉर इन्वायरमेंट. जब उसकी बारी है, पाकिस्तान ने कहा इन्वायरमेंटल डिजास्टर अकर्स बिकॉज ऑफ कश्मीर. लोगों क्या है, बिकॉज ऑफ कश्मीर, व्हाई दिस हैपेंस? उन्होंने कहा नो, बिकॉज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज इन सियाचिन. इसका मतलब है पाकिस्तान तो कश्मीर का नाम लेगा ही. एक बात याद रखो बच्चों, मोहल्ले में कोई कितना भी छोटा आदमी होगा, अगर आपको 2-4 बार गाली दे दिया तो आपकी प्रेस्टीज तो खतरे में आएगी ना. तो हमें इसी बात को बैलेंस करना है. लास्ट पॉइंट यू कैन राइट इसी में. But it doesn't mean that India is going to neglect our relationship with small neighboring countries. India is going to neglect our relation with small neighboring countries. With small neighboring countries. और देखो, कहा भी जाता है मेजर पावर का मतलब क्या है. आप मोहल्ले के नेताजी कब होंगे? जब 2-4 लोग आपकी बैंड वैगनिंग करते हैं. नेताजी ऐसे हों, जिंदाबाद मुर्दाबाद. कोई पावरफुल आदमी निकलता है तो उसके पीछे कारवां निकलता है ना. पीएम निकले बिना कैबिनेट के, तो कॉन्वॉय तो होना चाहिए उनका. वैसे इंडिया के लिए भी चाहिए, वैसे कुछ लोग तो होने चाहिए. इसे देखो, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है, भूटान हमेशा हमारे साथ रहता है. भूटान कहता है भाई अभी तुमको मेंबरशिप मिलनी चाहिए. हम कहते थैंक्स लॉर्ड फ्रेंड. जब यूएन में हम कॉन्टेस्ट कर रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, ऑलमोस्ट एवरी नेबरिंग कंट्री सपोर्टेड इंडिया एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान. बाकी लोगों ने सपोर्ट किया ना. अब कल के लिए देखो, कल के लिए अगर तीस्ता रिवर वाटर है, अगर वो यूएन में उठा दिया बांग्लादेश ने, दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर इंडिया. पाकिस्तान कंसिस्टेंटली रेज द इशू ऑफ इंडस रिवर वाटर. इसलिए ये इतना मैनेज करके चलना है कि नेबरहुड में कोई हमें गाली न दे. लास्ट हेडिंग, वर्ल्ड ऑर्डर. अरे का तो प्रॉब्लम है. अभी काला पानी उसने इशू छोड़ दिया था,
लेकिन अभी नाउ नेपाली कांग्रेस इज इन पावर, तो नेपाली कांग्रेस डाइल्यूट। और ये क्यों ऐसा करते हैं, मैं रीज़न बता दूंगा क्यों ऐसा करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपको लगता हो कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ पानी का झगड़ा है, व्हाट इज़ नॉट इशू, फिश, वाटर, जियो पॉलिटिक्स, नेशन बिल्डिंग, ये सब इशूज़ होते हैं। दिस मेरे रिफ्लेक्शन। तो काला पानी का इशू थोड़े है, वो इशू और है। और वो एंटी इंडिया, अभी आप देखो नहीं, इट इवन आफ्टर वीक वंस हसीना गवर्नमेंट चेंज, Bangladesh first time argued in 15 years, India is causing a flood in Bangladesh. Why Bangladesh is pointing out finger now? पॉलिटिक्स है, पानी है। और देखो पाकिस्तान तो ये कहता है अगर पाकिस्तान में ड्राउट आ जाए, इंडिया क्रिएटेड ड्राउट, पाकिस्तान में फ्लड आ जाए, इंडिया क्रिएटेड फ्लड। एंटी इंडिया अप्रोच ऐसा कई बार हमारे नेबरिंग कंट्रीज रखते हैं। पॉलिटिकल इशू आप देखो, वैसे देखो, इफ़ वी आर हैविंग वेरी मैच्योर रिलेशनशिप विथ आवर नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश तो बेस्ट एग्जांपल था। शेख हसीना नेवर स्पोक पब्लिकली अबाउट एनी इशूज विच आर हर्टिंग इंडियन पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। और इसलिए देखो बच्चों ये बात होती है, देखो एक होता है मैच्योर रिलेशनशिप, और मैच्योर रिलेशनशिप का मतलब है बहुत क्लोज दोस्त से भी डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस हुए, दूसरे की जाके बता दिया तुम जानते हो उसने हमारे साथ ऐसा किया, और फिर रायता फैलना तय है। नेबर स्पीक टू द नेक्स्ट। आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपने तरफ रखो, रिजॉल्व हो जाएगी कल। लेकिन आपने किसी थर्ड पर्सन को बता दिया तो कहाँ उसका मिसयूज करेगा आपको पता नहीं है। दैट वाज अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी बिटवीन हसीना एंड द इंडियन गवर्नमेंट। कभी भी भाई डिफरेंसेस हमारे होंगे पार्टनर के साथ है ना, तो इसको हम तीसरे पार्टनर को क्यों बताएं? यही फर्क है। But realistically, like we should not, like we are giving asylum to Sheikh Hasina, but we should support government, whichever government. ऑब्वियसली वी आर सपोर्टिंग गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। लेकिन अब शेख हसीना मान लो कहीं पे आ गई हैं तो दिस इज़ नॉट एन इशू, एंड वी आर वेरी मच एंगेज विद बांग्लादेश। तो भाई हमारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं, पैसा है, हमने कुछ बंद थोड़ी किया है। अरे भाई वो तो हमेशा बांग्लादेश करता रहेगा, बिकॉज उनका भी तो कुछ अप्रोच है। और हाउ वी कैन फॉरगेट द फैक्ट दैट द बांग्ला शेख हसीना हैज़ गिवन so much facility to a second supporter of Sheikh Hasina is not even, they are still in Bangladesh। तो ये बात भी आप नहीं कह सकते कि nobody supporting Sheikh Hasina as of now। Third point, still we are in wait and watch। My dear friend, in foreign policy commentary of every day is not possible। बड़ी सारी चीज़ें ना बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, अब उसकी में से डिप्लोमेसी चलती रहेगी। यू आर, हम कहाँ लेवल एंगेजमेंट करते हैं, वो तो पब्लिक के लिए डील नहीं करते। इसलिए देखो हमने क्या पूरी मीडिया में अब बांग्ला शेख हसीना कोई न्यूज़ ही नहीं है, और न होगी न्यूज़। और धीरे से फिर बातचीत करेंगे, वो कह देंगे मैडम निकल जाओ जर्मनी जहाँ आपके हस्बैंड हैं। ऐसे होता है फॉरेन पॉलिसी में ना भाई। वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू शेख हसीना बिकॉज सी वेरी मच सपोर्ट इंडिया। कुछ तो दोस्ती देंगे, लेकिन बट शेख हसीना विल नेवर स्पॉइल आवर रिलेशन विद बांग्लादेश। यू जस्ट लुक इन द डेज टू कम। बट प्रॉब्लम इज दैट इफ बांग्लादेश इज लुकिंग फॉर स्पॉइलिंग रिलेशन, देन हाउ शेख हसीना इज स्केप गोट। अगर उसको चाहिए, शेख हसीना इज ए स्केप गोट, उसको बहाना चाहिए। अब मुझे कृष्णा से लड़ना है तो मैं कहूँ कृष्णा तुमने मुझे कल गाली क्यों दी थी? आपको क्या करते हो सर? मैंने कहा गाली? ना, मैंने सुना था तुम अपने दोस्त से चाय पी रहे थे, उस समय तुमने मुझे गाली दी थी। लड़ने का मेरा मन कर रहा है। शेख हसीना इज नॉट एन इशू माय डियर फ्रेंड, रीड बिटवीन द लाइंस। पानी, शेख हसीना ने पानी पैदा कर दिया, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कर रहा है ना। फ्लड इज नॉट क्रिएटेड बाय शेख हसीना, देयरफॉर रीड बिटवीन द लाइंस माय डियर फ्रेंड। Sir, but like Modi met with Biden and we are reiterating the issue of safety of Hindus in Bangladesh. It seems that we are ओनली फॉर नो नो ओनली, अरे हम तो अफगानिस्तान में लोगों के साथ है ना। लेट अस सी इंडियाज अप्रोच। वी आर सेइंग दैट वी आर नॉट विद तालिबानी गवर्नमेंट बट वी आर विद पीपल ऑफ अफगानिस्तान। यही तो वहाँ भी कह रहे हैं, यही तो वहाँ भी कह रहे हैं ना ये बात केवल। इसका मतलब है बांग्लादेश पे थोड़ा प्रेशर होना चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है छोटा सा होके, ये पॉलिटिक्स में से गिव एंड टेक होता है। एक बताइए कि गाँव में चमकाइयाँ धमकाइयाँ भाग जाइए, ये पॉलिटिक्स में एक ही कला नहीं चलती है, साम दाम। हाँ।
पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन, पॉलिसी ऑफ एग्रीमेंट, पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, तो सब चीज़ पैरेलल चलता रहता है। पॉलिटिक्स इतना आसान नहीं होती है, जो दिखता है वो होता नहीं। लास्ट क्या लिखा आपने? वर्ल्ड ऑर्डर। आप कहोगे वर्ल्ड ऑर्डर का, और देखो व्हेनेवर वी आर एनालाइजिंग फॉरेन पॉलिसी, फर्स्ट इट इज़ अ डोमेस्टिक फैक्टर, रीजनल एंड वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद नेबरिंग कंट्रीज, और नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो कनेक्टेड विद द वर्ल्ड ऑर्डर। हाउ? डोंट यू थिंक दैट यूक्रेन क्राइसिस नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ओवर साउथ एशिया? यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? ये यूक्रेन क्राइसिस है या यूएस वर्सेस चाइना का राइवलरी है? यूक्रेन क्राइसिस इज मेनली मैनिफेस्टेशन। भाई देखो होता क्या है, होता क्या है कि जब दो मेजर लोग लड़ते हैं कोल्ड वार में कभी यूएस एंड यूएसआर आपस में लड़े नहीं। मारा कौन? अफगानिस्तान। मारा कौन? वियतनाम, कोरिया। दैट इज अ प्रॉक्सी लैंड। इसलिए आप देखो दो पार्टी के सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर, और मरता कौन है? वर्कर। वर्कर झंडा लेके जा रहा है, पिट रहा है, सांसद आराम से बैठा है, वो डिक्टेट कर रहा है। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। यूक्रेन इज मेरली पपेट। और पूरी चाइना ने रस्सी कस रखी है। एवरीवेयर देयर इज चाइना। इफ चाइना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, what Xi Jinping says that this new world order should be driven by Chinese power, and China's want to change this rule-based world order, liberal democratic world order maintained by US. China looking for changing that. और चाइना को चेंज करना है तो कैसे करेगा? यूएस को ड्रेन कर करेगा। यूएस को अगर हमने फंसा दिया यूक्रेन में, तो कल चाइना धीरे से ताइवान कब्जा कर लेगा। अपने अगर आपकी लड़ाई किसी से है तो जस्ट डाइवर्ट हिज एनर्जी इन वेरियस डायरेक्शंस। पहले हमने यूएस को कहाँ फंसा दिया, चाइना ने कहाँ फंसाया? यूक्रेन में। फिर कहाँ फंसाया? इसराइल में। फिर कहाँ फंसा दिया? वेस्ट एशिया में इधर फंसा दिया, इधर। उसके बाद धीरे से चाइना जाएगा, ताइवान ले लेगा। तो क्या यूएस इज एबल टू डाइवर्ट देयर एनर्जी इन ऑल थ्री डायरेक्शंस? वेरी डिफिकल्ट। तो सवाल ये है, चाइना जब दुनिया में पावर फैलाना चाहता है तो पड़ोस में नहीं फैलाएगा? आपको क्या लगता है, शेख हसीना हमारे खिलाफ बोल सकते हैं या somebody is behind शेख हसीना, somebody is behind यूनुस? चाइना। मोजू का बात है मेरे खिलाफ बोल देगा। देखो मुझे रामायण की युद्ध की बात मैं करूं, बाली को मारने कौन गया था? बाली को चैलेंज किसने किया था? सुग्रीव ने। वाइफ ऑफ बाली सी रीड आउट इंटरनेशनल रिलेशन, एंड बाली की वाइफ ने कहा नो नो नो, डोंट कम आउट ऑफ द होम। क्योंकि इतना कोई कमज़ोर आदमी आपको चैलेंज कर रहा है, इट मीन्स समबडी सपोर्टिंग। बाली की बात समझ में नहीं आई। इसे मैं ये मोइजू का मामला है। अब यू आर सेइंग मालदीव्स इज गोइंग अगेंस्ट इंडिया। मालदीव की औकात क्या है जो हमारे खिलाफ जाएगा? श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना। चाइना एंड चाइना मेजर पावर। और जब मेजर पावर है पूरी दुनिया में छाया जा रहा है। एंड चाइना, और पूरी दुनिया में एक ही स्टेट इंडिया है जो चाइना को जिसने जवाब दे दिया गालवान में। चाइना इज़ वेरी फ्यूरियस अगेंस्ट इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर कल गए, यूएस के साथ ट्रीट किया। यहाँ क्या हुआ, हम क्वाड को आगे लेके बढ़ रहे हैं, और हमारे नेवल शिप आजकल साउथ चाइना सी में भी जा रहे हैं। चाइना कहता है भाई हमारे मोहल्ले में। हम कहा तुम हमारे मोहल्ले में आते हो, हम तुम्हारे मोहल्ले में आएंगे। चाइना ने कहा हमसे कंपटीशन करोगे? हम कहा हम भी मेजर पावर हैं। चीन ने कहा कब से मेजर पावर हो गए भाई? हमने कहा वेरी अर्ली। यही पावर क्लैश है। तो अब बताओ ये नेबरहुड की बात है, राइज अप चाइना की बात है। अब सवाल है कि इन छोटे छोटे देशों को चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने से कैसे बचाएं? एक बात याद रखो दोस्तों, कोई दोस्त आपको छोड़ के चला गया तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, दुनिया बड़ी बेवफा है। ऐसे ही स्टेटमेंट होता है, इमोशनल रिएक्शन है। आपने किसी दोस्त को जाने दिया तो गलती दोस्त की थी आपकी थी? अरे मोइजू, श्रीलंका कैसे हमसे दूर भाग सकते हैं? इनको पकड़ो, नेबरहुड है। चाइना को आने में समय लगेगा हमें।
चाइना को समय लगा, हम इनके नेबरहुड में हैं. That is reason these nations are becoming more vital because of rise of China. And here geopolitics and rise of China are on the same page. क्योंकि geopolitics जो है उसमें rise of China है, तो चाइना के कारण ये सारे, अदरवाइज यहाँ पे अगर चाइना ना होता सवाल ही पैदा नहीं होता, इनका इतना इन्फ्लुएंस होता ही नहीं हमारे ऊपर. लास्ट पॉइंट यू कैन राइट फर्स्ट. बट हम फोर्स करके तो मतलब अपने फेवर में नहीं रख सकते ना, तो उनका फोर्स कहाँ कर रहे हैं, प्यार से. वो माय गॉड, स्मॉलर नेशन फोर्स करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता. गवर्नमेंट मतलब एंटी इंडिया है जैसे एंटी इंडिया नहीं है, ऐसा नहीं. कभी कभी बयानबाजी आ जाती है. और याद रखो, व्हाट इज डिप्लोमेसी? मेक एडवर्सरी टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू पार्टनर, पार्टनर टू एलाई. दिस इज डिप्लोमेसी मेरे दोस्तों. दिल तोड़ते नहीं. किसी ने एक बार ना कह दिया, दिल तोड़ के बैठ मत जाओ, कीप ट्राइंग विथ नेशन स्टेट. अंडरलाइन पॉइंट इज दैट, दैट इज डिप्लोमेसी. डोंट बी इमोशनल. यू कैन राइट. क्या लिखा आपने? लिख लो. डोंट अप्लाई इन द पर्सनल रिलेशंस. व्हाट आई एम टेलिंग फॉर international politics. Last point you can write. Now the world is moving towards a new Cold War. New Cold War underline. Now the world is moving towards new Cold War. Where conflict between Pax Americana, where conflict between Pax Americana and Pax Seneca, the Pax Americana means dominance of America. Pax means Latin term. Pax Americana and Pax Seneca is visible. Pax Americana and Pax Seneca is visible in the world politics. China has been enhancing her influence. China has been enhancing her influence in the Indian Ocean and South Asia. In the Indian Ocean and South Asia. Thereafter, smaller South Asian nations becomes very vital. Smaller South Asian nations become very vital for the economic and strategic interest of India. For economic and the strategic interest of India. That's all for today. तो आप देखोगे that is first topic, why neighborhood is first. Then what is our policy, what is Gujarat doctrine, what is neighborhood first policy, what is challenges, that I will tell you tomorrow. That's all for today.